Good afternoon, everyone. I'm Rana Ravi from Committee on MSME and Startup. I would like to welcome our speaker Anand sir and our coordinator Puneet sir for today's Patsala series. Puneet sir, over to you. Thank you, sir. My name is CA Puneet Jain, coordinator of the MSME Committee and Startup ICI. It is my privilege to warmly welcome you to the 83rd MSME Pathshala Series 2.0 webinar on subsidies for MSME, a critical topic that directly impacts the growth trajectory of India's vibrant MSME sector. I extend my sincere gratitude to our respected management committee for their unwavering vision and leadership. Their strategic guidance has transformed the MSME Pathshala into a premier knowledge platform, consistently delivering actionable insights to empower C professionals in serving the MSME ecosystem more effectively. A very special welcome to our distinguished speaker, CA Anand Totla sir. About him, he's a 12th Commerce State topper and first attempt CA qualifier in 2005 batch. He's holding CISA from USA, DISA ICI, and certificates in bank and forensic audits. He started at Deloitte and KPMG before founding his firm in 2007, now with branches in Pune and Nanded, specializing in project financing and government subsidies and wealth management. Currently, he serves as Secretary of Chhatrapati Sambhaji Nagar branch of WIRC ICAI and Treasurer of Maharashtra Pradesh Maheshwari Yuva Sansthan. A state level swimmer and cricketer, he was honored as NCERT's best student by Maharashtra government, whose deep expertise in his deep expertise in government schemes, subsidy navigation, and practical implementation will demystify central and state level subsidies. His real world example and case studies will equip us with tools to guide clients through eligibility criteria, documentation, and compliance hurdles. As we know, MSME contributes over 30% to India's GDP, 45% to manufacturing output, and employ millions. Yet many remains unaware of the transformative subsidy opportunities. This session is designed for maximum value addition. Please post your queries in the chat box for interactive clarification. With these words, I now invite our the speaker of today, CA Anand Totla sir, for their insights. Thank you. Thank you, Puneet sir. Thank you, MSME Startup Committee of our institute for taking such a wonderful initiative, and thank you for inviting me for this session. We'll be covering majorly MSME subsidy schemes for state of Maharashtra, and we'll be communicating in both English and Hindi. It will be a mixed one. So should we start? Yes, sir. Subsidies and incentives for MSME. So the flow of today's presentation will be learning about will be understanding what is MSME, what is definition of MSME. Since the definition, the coverage has been changed, it has been more widened now. And what are the various subsidies, what are the various incentives for MSME in Maharashtra? We'll be comparing two policies, that is PSI Package Scheme of Incentive 2019 as well as new proposed industrial policy of 2025. The policy 2025 has already been discussed in the cabinet meeting, but due to election code, it will be formally announced, and the GR will be coming in following some days. So to start with, just give you a brief about some MSME figures, which there are total almost 12 crores MSME enterprises in India, out of which around 6.83 crores are registered on MSME. These figures have been, we have got these figures from the MSME portal. Out of which around 6.68 crores are micro and around 13.5 lakhs are small enterprises. So majorly MSME comprises of micro and small enterprises in number of, if we talk in number of cases, number of entrepreneurs.
So, what is the economic impact of the MSME? Today, they contribute to 30% of the GDP growth of India. Overall, they contribute to the 45% exports which are being done by India as of now. Around 40% of total manufacturing output which is being done in India is done by the MSMEs, and around 30 crore direct employment across all the industries put together, not specific any industry, around all industries put together. These are the figures which really shows that what MSME is doing in India. हम लोग देखते हैं एमएसएमई को हम एक छोटा सा सेक्टर समझ के चलते हैं, बट जब आप क्लब करोगे ओवरऑल इंडिया, पैन इंडिया, तब आपको ध्यान में आएगा कि व्हाट इज द टोटल इम्पैक्ट ऑफ एमएसएमई in our GDP and exports. Now, there are some challenges that are being faced by MSMEs in India. To summarize some, we have the first one is financial gap. See, MSME, as we have seen in the earlier side, कि यहाँ पे बहुत सारे माइक्रो और स्मॉल एंटरप्रेनर्स है जो एमएसएमई का बड़ा कंपोनेंट फॉर्म करते हैं. फाइनेंस एक बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पे उनको दिक्कत आती है ड्यू टू कोलेट्रल, एब्सेंस ऑफ कोलेट्रल सिक्योरिटी. इवन दो गवर्नमेंट हैज टेकन वेरियस इनिशिएटिव्स कि जहाँ दे विल बी गेटिंग द कोलेट्रल फ्री लोन्स फ्रॉम वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, and they are continuously improving that scheme. Second, the thing is timely recovery of the dues from the customers. क्या होता है, माइक्रो और स्मॉल कस्टमर जो होते हैं, दे आर सैंडविच बिटवीन दी सप्लायर्स हु आर बिग एंड दे आर वेंडर्स हु आर अगेन बिग. तो ये लोगों को टाइमली रिकवरी मिलती नहीं है पैसों की, जिसकी वजह से देयर इज अगेन अ बॉटलनेक इन दी वर्किंग कैपिटल cycle of the MSMEs. Third, a big competition from the larger business. And fourth, skill deficit, क्योंकि MSME not necessary कि ये बड़े cities में रहेगा. It could be tier 3, tier 4 cities, as well as the paying capacity of this small and micro enterprises as compared to large enterprises is very less. So skill deficit एक वहाँ पे रहता है कि skilled labor इनको नहीं मिलता है जल्दी to operate the new technology. Now the major announcement what has been done in the budget 2025, the 4 pillars of the economic growth were defined as agriculture, MSME, investments and exports. तो MSME को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया था बजट 2025 के इसमें. उसके चलते MSME की डेफिनेशन भी बहुत बड़ी कर दी गई थी. जो कवरेज था वो बहुत बड़ा किया था MSME का. CGTMSE कवर जो मैंने बताया कि फाइनेंस का एक दिक्कत होता है. सो फर्स्ट इट वाज 2 crores, देन इट वाज इंक्रीज टू 5 crores, एंड इन मार्च बजट 25 इट हैज बीन इंक्रीज टू 10 crores. तो 10 करोड़ तक आपको बैंकिंग आपको लोन देता है, बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपको लोन देती है विच इज कोलेट्रल फ्री. बहुत सी बैंक्स ये चीज़ों के लिए अच्छा इनिशिएटिव लेके एंड दे सी कि अगर कस्टमर अच्छा है एंड एवरीथिंग इज फाइन, दे गो इनटू हाइब्रिड सिस्टम के कोलेट्रल पूरा नहीं है तो कुछ CGTMSE का कवर लेके उस लोग साथ में कवर करते हैं और उनको फंडिंग मिल जाती है. दे हैव स्टार्टेड विद अ न्यू एक्सपोर्ट MSME, जहाँ एक्सपोर्ट्स ही अगर मेजर एक्सपोर्ट्स है अगर आपके यूनिट्स है, सो दे आर गिविंग जो 10 करोड़ का लिमिट है, दे हैव इंक्रीज टू 20 crores अंडर कोलेट्रल फ्री. देन द फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर जो पहली बार कोई यूनिट शुरू कर रहे हैं तो उनको टर्म लोन अप टू 2 crores, दैट इज अगेन कोलेट्रल फ्री. इसमें कई सारे बैंक्स अपने अपने नाम उन्होंने दिया है, जैसे SBI ने स्टार्टअप इंडिया करके स्कीम दिया है, BOB ने, बैंक ऑफ बड़ौदा ने महिला संवर्धन करके स्कीम दिया है, जिसमें दे आर गिविंग कोलेट्रल फ्री लोन अप टू 2 crores फॉर द न्यू एंटरप्रेन्योर्स टू स्टार्ट देयर बिजनेस जर्नी. Now, in case of micro units, many of the banks they have come out with a credit card जहाँ पे 5 लाख का लिमिट होता है. आप 5 लाख का लिमिट यूज करके यू स्टार्ट योर बिजनेस. आप आपके बिजनेस के लिए आपको जो परचेस करना है, जो एक्सपेंसेस करने हैं, आप वो क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप कर सकते हो. वो क्रेडिट कार्ड उसको टर्म दिया है, इट इज यूज्ड एज अ कैश क्रेडिट लिमिट फॉर दोस पर्टिकुलर यूनिट्स. नाउ द न्यू डेफिनेशन व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट द MSME which has been revised in 2025, micro, small and medium investment. बेसिकली MSME की डेफिनेशन जो है दैट इज इन्वेस्टमेंट इन बेसिकली प्लांट एंड मशीनरी एंड टर्नओवर, ये दो ही चीजों पे.
हम लोग जब भी इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे एमएसएमई के हद तक दैट वुड बी इन प्लांट एंड मशीनरी। आपका लैंड, बिल्डिंग, इलेक्ट्रिफिकेशन ये कोई चीज उस पर कवर नहीं होती है। माइक्रो एंटरप्राइजेस का अर्लियर द लिमिट वाज 1 crore which has been increased to 2.5 crores investment in plant and machinery, whereas turnover was up to 5 crores which has been increased to 10 crores. As far as small enterprises is concerned, the investment in plant and machinery earlier was 10 crores which has been increased to 25 crores, and the turnover which was the cap was 50 crores has been increased to 100 crores. Medium enterprises may the investment in plant and machinery was 50 crores up to 50 crores. Now it has been increased to up to 125 crores, and the total turnover जो उसमें दिया है MSME के लिए that was earlier it was capped up to 250 crores, now it has been increased to 500 crores. ये जो क्राइटेरिया है ये दोनों साथ चलते हैं, बोथ इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर ये दोनों साथ में चलेंगे। एंड टर्नओवर की जो डेफिनेशन दी है, द एक्सपोर्ट्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम इट, एक्सपोर्ट्स उसमें इंक्लूड नहीं होते हैं। सो आप देखोगे तो इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी ऑलमोस्ट 2.5 टाइम इंक्रीज करी है, और आपका जो टर्नओवर लिमिट है वो ऑलमोस्ट ट्वाइस 2 टाइम्स इंक्रीज करी है। जो पहले 5 करोड़ था वो 10 करोड़ हुई है, जो 50 करोड़ था वो 100 करोड़ हुई है। क्योंकि आज की तारीख में जो मेजर जो वर्क हो रहा है दैट इज इन माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, और उनके टर्नओवर जो पहले के जो क्राइटेरिया वो बहुत जल्दी मीटअप हो जा रहे थे, तो वो एमएसएमई का डेफिनेशन बढ़ाने के लिए उन्होंने उनका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी एज वेल एज टर्नओवर दोनों भी उन्होंने इंक्रीज किया है। Now, what is the definition of plant and machinery? It includes tangible assets only. It does not includes land and building, plant and machinery, electrification, कुछ नहीं आता है। और बेसिक कॉस्ट पे ये पकड़ा जाता है, जीएसटी कंपोनेंट भी यहाँ पे पकड़ा नहीं जाता है इन प्लांट एंड मशीनरी। डेफिनेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, देयर आर सम एक्टिविटीज विच आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम एमएसएमई, लाइक फॉरेस्ट हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया है, फिशिंग एंड एक्वाकल्चर हो गया है, होलसेल एंड रिटेल हो गया है। ये जो एक्सक्लूड किया है एमएसएमई में, ये दिस इज फॉर द सब्सिडी पर्पस। बट एमएसएमई जो अगर हम इफ यू लुक इनटू बैंकिंग फ्रॉम बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू, तो होलसेल एंड रिटेल ट्रेड जो है दैट इज कवर्ड अंडर एमएसएमई फॉर बैंकिंग पर्पस। बैंक्स में आप होलसेलर हो, आप रिटेलर हो, आपका उद्यम है, यू आर कैटेगराइज्ड एज अ एमएसएमई कस्टमर फॉर दोस, और आपको जो भी प्रायोरिटी लेंडिंग, जो भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलना है वो सारा आपको मिलेगा। नाउ व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ एमएसएमई रजिस्ट्रेशन? उद्यम रजिस्ट्रेशन का हम लोगों को क्या बेनिफिट है? जेम पोर्टल है जहाँ पे गवर्नमेंट कई सारे उनकी जो रिक्वायरमेंट है, जेम पोर्टल पे वो उनकी रिक्वायरमेंट देते हैं कि उनको क्या मटेरियल चाहिए, एंड सम पोर्शन ऑफ दिस दे हैव फिक्स्ड कि ये हम लोग एमएसएमई से ही खरीदेंगे। सो इफ यू हैव उद्यम रजिस्ट्रेशन एंड इफ यू आर एमएसएमई, आप जेम पोर्टल पे अगर रजिस्टर करते हो तो यू गेट अ बेनिफिट फ्रॉम दैट, आपको गवर्नमेंट बिजनेस का एक ऑप्शन मिल जाता है। फिर ट्रेड्स पोर्टल एक लाया है जहाँ पे बिल डिस्काउंटिंग आपका होता है। फिर जैसे मैंने बताया कि हमारे इसमें रिकवरी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है एमएसएमई के लिए, जहाँ पे आपके सप्लायर्स भी बढ़े हैं और आपके कस्टमर्स भी बढ़े हैं। तो एमएसएमई समाधान एक पोर्टल दिया है जहाँ पे आपके जो पेमेंट डिले हो रहे हैं या आपको पेमेंट नहीं आ रहा है, तो यू कैन लॉज अ कंप्लेन ओवर देयर, और आप वहां से आप आपकी रिकवरी आप कर सकते हो जो भी आपके ड्यूज है। इफ यू हैव अ प्रॉपर उद्यम, आपका अगर रजिस्ट्रेशन है, तो आप जो भी स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सब्सिडीज है वो सब चीज़ों के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। आप सीजीटीएमएसी कोलेटरल फ्री जो लोन हम लोग बात कर रहे थे, वो फाइनेंस एट अ लोअर रेट आपको मिल जाएगा। और अभी जो सेक्शन 43BH आया इनकम टैक्स एक्ट में, जहां आपको मैंडेटरीली आपको इंटरेस्ट का पेमेंट आपको 45 डेज के अंदर पेमेंट आना चाहिए, नहीं आता है तो आप इंटरेस्ट के लिए आप बात कर सकते हैं आपके सप्लायर से जहां से आपको पेमेंट आना है। अभी 2000 जो 25 का जो बजट था गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का, उन्होंने पहले इसके लिए 2019 में इसका बजट एलोकेशन था फॉर द इंसेंटिव वाज अराउंड 3000 करोड़, which was raised to 6400 crores in 2025. The purpose behind the incentives जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र दे रही है कि ये इंडस्ट्रीज कॉन्सेंट्रेटेड नहीं जाती है कि एक ही जगह कॉन्सेंट्रेट रहे या स्पेसिफिक कोई लोकेशन पे कॉन्सेंट्रेट रहे, ये अलग अलग मतलब पैन महाराष्ट्र इसका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, जिससे लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, और सभी जगह पे बिजनेस ग्रोथ हो, वो पर्पस की वजह से पैकेज स्कीम ऑफ इंसेंटिव में इन्होंने
कई सारे क्राइटेरियाज किए हैं जो हम आगे बात करेंगे, और बजट भी इन्होंने 3000 करोड़ से बढ़ा के 6400 करोड़ किया है। ये पैकेज स्कीम, ये जो इंसेंटिव है, ये इंसेंटिव हम लोगों को किस पे अवेलेबल है? ये जो अवेलेबल है, अगर कोई यूनिट, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, अभी हम लोग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात करते हैं, अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्ट करता है, भले ही वो नया यूनिट हो या वो नए ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है और वो कुछ एक्सपेंशन कर रहा हो, तो ये लोगों को इंसेंटिव का बेनिफिट मिल सकता है। एक्सपेंशन के लिए उन्होंने अलग क्राइटेरियाज दिए हैं, नए के लिए अलग क्राइटेरियाज है, तो आगे चल के हम लोग वो भी देखते हैं। और ये बैकएंड सब्सिडी है, रेवेन्यू लिंक्ड है, ताकि आपको इंसेंटिव पीरियड उन्होंने दिया है 8 साल, 10 साल, 12 साल का। जितने साल तक आप बिजनेस करते रहोगे उतने साल तक आपको सब्सिडी आएगा, और आपके रेवेन्यू से वो लिंक किया, सब्सिडी को लिंक किया हुआ है कि आप कितना टर्नओवर कर रहे हो, उससे आपका सब्सिडी लिंक्ड है। अभी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के स्कीम्स जो है, पैकेज स्कीम ऑफ इंसेंटिव 2019, जो रेवेन्यू लिंक्ड है, ये स्कीम में बेनिफिट ले सकते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, फूड प्रोसेसिंग है, बायोटेक्नोलॉजीज है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो भी फर्म्स है ये लोग इसमें, वेदर वो प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, एलएलपी है, प्राइवेट लिमिटेड है, कुछ भी रहने दो आप, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में हो या फूड प्रोसेसिंग में हो, आप इसका बेनिफिट ले सकते हो। वुमन एंटरप्रेन्योर के लिए एक अलग से पॉलिसी डिफाइन की है, जहाँ पे आपको वो भी फिर से रेवेन्यू लिंक्ड है, जिसमें आपको कुछ एडिशनल बेनिफिट्स दिए जाते हैं एज कंपेयर टू नॉन वुमन एंटरप्राइजेस। सेम मैन्युफैक्चरिंग, फूड प्रोसेसिंग एंड बायो प्रोसेसिंग वाले जो यूनिट्स है उनको यहाँ पे बेनिफिट दिया गया है। इसके अलावा नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी, जहाँ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स या सेमीकंडक्टर्स, जो कि हाईली हम लोग उसके लिए इंपोर्ट पे हम लोगों को रुकना पड़ता है, इंपोर्ट ही है मेजॉरिटी, उसके लिए इन्होंने अलग से एक पॉलिसी डिफाइन करी है। महाराष्ट्र ने ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी एक अलग से दी है, जहाँ पे इलेक्ट्रिकल व्हीकल या उनके कंपोनेंट्स, बैटरीज, उसके रिलेटेड चार्जिंग स्टेशंस, जो उसके पार्ट्स बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उनके लिए एक अलग से बेनिफिट दिया है। अब जैसे इस पे बात किया जाए तो अपकमिंग अभी छत्रपति संभाजीनगर में बिडकिन जो है, और एक डीएमआईसी में बिडकिन एरिया आता है, जहाँ पे ऑलमोस्ट सभी बड़े मेजर ईवी मैन्युफैक्चरर, टोयोटा है, एथर है, जेएसडब्ल्यू है, ये लोगों ने इनका इन्वेस्टमेंट किया है। ऑलरेडी लैंड एक्विजिशन हो चुके हैं, और उनके कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी भी शुरू हो चुका है वहाँ पे। अब हम आते हैं PSI 2019 जो है, उसके कुछ की फीचर्स पे। ये अवेलेबल है आपको फॉर द इन्वेस्टमेंट इन लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, जैसे पहले बताया था। आप अगर नया प्रोजेक्ट डाल रहे हो तो उसके लिए भी अवेलेबल है, और अगर आप एक्सपेंशन कर रहे हो तो उसके लिए भी अवेलेबल है। इसको 7 जोन में डिवाइड किया गया है। ये जो 7 जोन है, ये है A B C D D+ नो इंडस्ट्रियल एंड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स। ए कैटेगरी यानी जहां पे बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑलरेडी हो चुका है, बी जिसमें थोड़ा कम है, C D D+ उस तरह से फॉलो करेंगे। तो उसी तरीके से इनमें कैपिटल सब्सिडी भी दिया है 2019 के स्कीम में। जैसे ए जो स्कीम है, हम लोग देखेंगे जो जोन है, हम आगे आएंगे तब आपको पता चलेगा कि ये जोन किस तरह से बाइफरकेट किया हुआ है। जैसे ए जोन में कोई सब्सिडी दिया नहीं है, 2019 में सब्सिडी वहां से खत्म कर दी गई है, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे इंडस्ट्रियल अच्छी खासी डेवलपमेंट हो चुकी है। जैसे आप नीचे आओगे B C D D+ में, तो आपका सब्सिडी, जो कैपिटल सब्सिडी आपको जो अवेलेबल है, वो 30% से 100% तक है ऑन द फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट। आप एरिया क्लासिफिकेशन के बेसिस पे, जो आपका ABCD है वो बेसिस पे। और ये जो सब्सिडी आपको अपफ्रंट नहीं मिलेगा, ये आपको मैंने जैसे पहले बताया कि आपको दिस सब्सिडी वुड बी अवेलेबल, विल बी लिंक टू योर रेवेन्यू। आपको और टेन्योर दिया जाएगा 7 years to 5 years to 10 years का, कि वो पीरियड में आपने जितना रेवेन्यू किया है, जो हिसाब से किया है, और आपको आपके टर्नओवर के बेसिस पे आपको इसमें सब्सिडीज आते रहेंगे। सब्सिडीज आर इन वेरियस फॉर्म्स, आगे जाके हम लोग वो भी देखते हैं। अभी न्यू यूनिट यानी क्या है, कि जो यूनिट अभी पहली बार सेटअप हो रहा है, भले ही वो प्राइवेट सेक्टर हो, कोऑपरेटिव हो, एनीथिंग, कोई तालुका में रहो। अब यहां से एक चीज है कि अगर मेरा ऑलरेडी एक यूनिट है, मैं XYZ प्राइवेट लिमिटेड के नाम से मेरा यूनिट है, मैं सेम लोकेशन में
सेम डिस्ट्रिक्ट में दूसरे तालुका में अगर मैं मेरा और एक यूनिट डालता हूँ XYZ का, तो दैट विल बी ट्रीटेड एज अ न्यू यूनिट, नॉट ए एक्सपांशन यूनिट, क्योंकि तालुका बदल रहा है। तालुका जब जब बदलता है तो न्यू यूनिट कंसिडर किया जाता है, ना कि एक्सपांशन। तो ये भी एक चीज है कि अगर कोई अपने क्लाइंट है जो ऑलरेडी जिनका एस्टेब्लिश्ड यूनिट है और वो एक्सपांशन करना चाह रहे हैं और वो कोई नई जगह देख रहे हैं, तो एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट कई सारी चीजें जो जहाँ हमारा रोल आता है टू प्रोवाइड देम अ प्रोफेशनल सर्विसेज, तो हम लोग ये भी देख सकते हैं कि इफ दे आर इन वन तालुका, और अगर एडजॉइनिंग कोई दूसरे तालुका में ही अगर हम लोगों को जगह मिल रही है जहाँ डिस्टेंस ज्यादा नहीं आ रहा है और हम लोगों को बेनिफिट अच्छा मिल सकता है एज, क्योंकि नया यूनिट के लिए आपको बेनिफिट फॉर एग्जांपल 80% है, तो एक्सपेंशन के लिए दैट वुड बी 75% ऑफ व्हाट यू आर एलिजिबल फॉर द न्यू यूनिट। तो अगर तालुका थोड़ा बदलते हैं, अगर थोड़ा सा डिस्टेंस थोड़ा सा चेंज कर दे और अगर हम लोगों को 25% एक्स्ट्रा सब्सिडी अगर मिलती है, तो वो एक एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारी तरफ से एक सजेशन जाना चाहिए क्लाइंट्स को। अल्टीमेटली डिसीजन उनका है, दे विल हैव अ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कि उनको क्या अच्छा है। नए यूनिट का मतलब एग्जिस्टिंग यूनिट में ही आप, अब एक्सपेंशन के दो तरीके हैं, एक एग्जिस्टिंग यूनिट में ही आप नए मशीन्स डाल रहे हो, या तो आप नया ऑल टुगेदर एक नया यूनिट सेटअप कर रहे हो विद इन द सेम तालुका, क्योंकि तालुका चेंज हुआ तो नया यूनिट ट्रेड किया जाएगा। 2019 1 अप्रैल 2019 के बाद में उसका इफेक्टिव स्टेप कंप्लीट होना चाहिए। इफेक्टिव स्टेप यानी उससे रिलेटेड जो भी आपको लैंड एक्वायर करना है, कंस्ट्रक्शन में परमिशंस लेना है, प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर करना है, ये सारा 1 अप्रैल 2019 के बाद होना चाहिए था। अगर कोई ऑलरेडी फर्म है और मैं उसको ही कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करता हूँ या उसको ही दो डिवीजन में ब्रेक करता हूँ और फिर उसको बोलता हूँ कि ये मेरा नया यूनिट है, वैसा नहीं चलेगा। न्यू यूनिट मतलब ऑल टुगेदर नया सेटअप पूरा रहेगा, न्यू फ्रेश प्लांट एंड मशीनरी उसमें आएगी। नाउ व्हाट इज फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट? फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट में क्या क्या पकड़ा जाता है? इट इंक्लूड लैंड कॉस्ट, योर बिल्डिंग, योर प्लांट एंड मशीनरी, लैंड डेवलपमेंट कॉस्ट हो गया, इंस्टॉलेशन प्री ऑपरेटिव एक्सपेंसेस हो गए, R&D एक्सपेंसेस हो गए। इंस्टॉलेशन एंड प्री ऑपरेटिव एक्सपेंसेस यानी जो आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस भी, आपने टर्म लोन लिया है, आपका यूनिट शुरू होने तक जो हम इंटरेस्ट कैपिटलाइज कर रहे हैं, वो भी सारा आपका FCI में काउंट हो जाएगा। फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट में वो फिगर्स, वो सारा एक्सपेंसेस काउंट हो जाएगा। ये सारा मिलके आपका फिक्स असेट जो है, फिक्स कैपिटल असेट, ये फिक्स कैपिटल असेट के बेसिस पे ही आपका कितना आपको एलिजिबल है सब्सिडी, वो सारा उसके ऊपर से डिफाइन होगा। अभी जो हम लोग इफेक्टिव स्टेप्स की बात कर रहे थे कि 1 अप्रैल 2019 के बाद आपका न्यू यूनिट जो शुरू होना चाहिए फॉर क्लेमिंग द सब्सिडी और इंसेंटिव अंडर 2019 स्कीम। इफेक्टिव स्टेप्स क्या है? आपका कंपनी फॉर्मेशन, इफेक्टिव पोजीशन ऑफ लैंड, उद्यम रजिस्ट्रेशन एंड MPCB कंसेंट टू एस्टेब्लिश, ये आपका जो है 1 अप्रैल 2019 के बाद रहना चाहिए ये सारी चीजें। तो आप 2019 की जो इंसेंटिव स्कीम है आप उसके लिए एलिजिबल होते हो। इसमें से अगर ऐसा होता है कि हमने लैंड कॉस्ट अगर हमारा पहले आ गया है 2019 1 अप्रैल 2019 के पहले ही हमने लैंड एक्वायर कर लिया है, तो फिर वो लैंड हमारा इसमें एलिजिबल नहीं होगा। कंस्ट्रक्शन भले ही हम बाद में कर रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट विल बी इंक्लूडेड इन दैट, और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट फिर प्लांट एंड मशीनरी जो भी हम इन्वेस्टमेंट करेंगे वो सारा हमारा उसमें इंक्लूड हो जाएगा। लैंड कॉस्ट हमारा अगर 2019 के पहले है तो उसमें इंक्लूड नहीं होगा। सेम विद कंस्ट्रक्शन, अगर हमने लैंड कंस्ट्रक्शन पहले कर लिया है और प्लांट एंड मशीनरी हम खाली इंस्टॉल कर रहे हैं 1 अप्रैल 2019 के बाद में, तो खाली प्लांट एंड मशीनरी ही फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट में पकड़ा जाएगा। अभी 2019 के स्कीम में उन्होंने कुछ सेक्टर्स दिए थे कि जो उनको सेक्टर्स ये लोग प्रमोट कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, जो कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स है, एरोस्पेस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है, टेक्सटाइल है, उसके अंदर बायोटेक्नोलॉजी है, एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग है, IT प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एंड सेमीकंडक्टर्स है। ऐसे कई सारी इंडस्ट्रीज उन्होंने, ऑटो कंपोनेंट है, ये कई सारी इंडस्ट्रीज उन्होंने शॉर्टलिस्ट की है कि जो इनके लिए ये चाहते हैं कि ये इंडस्ट्री ग्रो करे जिससे कि इकोनॉमी भी ग्रो हो, और जो इसमें से कई सारे जो है जैसे सेमीकंडक्टर है, IT प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग है, इसके लिए हम लोग वी आर हेविली डिपेंड अपॉन द इम्पोर्ट्स, जो हम लोग इम्पोर्ट के लिए रुकते हैं। इम्पोर्ट हुआ तो हम लोगों के पास ऑप्शन बनता है, क्योंकि यहाँ पे लोकल में मैन्युफैक्चरिंग काफी कम है चीजों की, तो वो चीजों को प्रमोट करने के लिए उन्होंने
स्पेशल कुछ इंसेंटिव्स दिए हैं इन 2019। अभी ये जो तालुका के जो क्लासिफिकेशन किए इन्होंने A B C D D+ जैसे हम लोगों ने बात की, जो 7 क्लासिफिकेशन है, बेस्ड ऑन दो 7 क्लासिफिकेशंस इनका इन्होंने इंसेंटिव स्ट्रक्चर डिफाइन किया है। ये इंसेंटिव स्ट्रक्चर कैसे है कि जैसा ए क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया था, ए है, ए क्लासिफिकेशन में इन्होंने कोई इंसेंटिव रखा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये जो एरिया है दैट इज इंडस्ट्रियली वेरी वेरी वेल डेवलप्ड, अब वहां पे ज्यादा स्कोप बचा नहीं है, तो उन्होंने इंसेंटिव वाका 2019 की स्कीम में 0 कर दिया था। फॉलोड बाय बी सी, जहाँ 30%, 40%, 50%, 60% उन्होंने बेनिफिट दिया है। और ईयर्स भी अगर आप देखो तो एलिजिबिलिटी पीरियड भी जो दिया है उन्होंने वो 7 ईयर्स था। फिर आगे जाके जैसे हम लोअर रीजन में जा रहे हैं तो वो 10 ईयर्स तक हम लोगों को बेनिफिट दिया है। उसमें इन्होंने विदर्भ, मराठवाड़ा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, धुले इसको ऑल टुगेदर अलग निकाला है, ये 80% में है। और इसमें कुछ उन्होंने नो इंडस्ट्री डिस्ट्रिक्ट या नेक्सलन अफेक्टेड एरियाज इन्होंने अलग से डिफाइन किया है। और नंदुरबार को इन्होंने एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर किया है जहाँ पे नया ग्रोथ आ रहा है। अब नंदुरबार से एक चीज मैं आपको एक बताता हूँ। नंदुरबार, इफ यू सी जोग्राफिकल लोकेशन, इट इज बॉर्डर फॉर महाराष्ट्र एंड गुजरात। गुजरात में अगर आप देखोगे तो आपको सब्सिडीज बहुत ज्यादा नहीं है, तो बहुत से यूनिट्स हम लोगों के पास में कुछ कस्टमर्स आते हैं कि हम लोग गुजरात में हैं, हम लोगों को ऐसे सब वहाँ पे बेनिफिट है। अगर वो नंदुरबार से नजदीक है तो हम लोगों की तरफ से एक सजेशन रहता है कि आप गुजरात की जगह आप नंदुरबार क्यों नहीं करते हो, क्योंकि आपको बेनिफिट ज्यादा है इन फॉर्म ऑफ सब्सिडी। तो आपको जब कस्टमर से, क्लाइंट से आप जब बात कर रहे हो तो कि वो कौन सी कैटेगरी में फॉलो कर रहा है, कौन से रीजन में फॉलो कर रहा है तालुका क्लासिफिकेशन में, जिससे कि अगर थोड़ा सा हम लोग उसको सजेस्ट करें और अगर वो तालुका चेंज होता है और अगर उसको बेनिफिट अगर ज्यादा मिलता है तो दैट विल बी गुड, क्या बोलते हैं हम लोग, हमारी तरफ से एक इनपुट रहता है फॉर द कस्टमर। और अगर उसको बेनिफिट होता है तो इनडायरेक्टली हम लोगों को बेनिफिट अलग मिलता है। सो वाइल सजेस्टिंग द एरिया, अगर कोई प्रोजेक्ट आता है इनिशियल फेज पे तो आप कौन सी एरिया में उसको वहाँ इंसेंटिव कितना है, ये थोड़ा सा प्रिलिमिनरी आप स्टडी करके उनको आप सजेस्ट कर सकते हो कि आप ये एरिया के बजाय आप ये एरिया में हो, ताकि आपको बेनिफिट ज्यादा मिले। कितना बेनिफिट ज्यादा मिलेगा आप कैलकुलेशन करके आप उनको बता सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस, फूड एंड एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स जो है उसमें एडिशनल 20% बेनिफिट दिया है। जो इंसेंटिव अभी हम लोग देख रहे हैं विदर्भ, मराठवाड़ा जैसे 80% है फॉर एग्जांपल, तो अगर कोई फूड प्रोसेसिंग या एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट अगर विदर्भ या मराठवाड़ा में अगर एस्टेब्लिश करता है तो उसको वहाँ पे 80+20 ऐसे 100% उसको बेनिफिट मिलेगा इन टर्म्स ऑफ फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जो भी उसने इन्वेस्ट किया है उसके यूनिट में। इन एडिशन टू दैट उसको एलिजिबिलिटी पीरियड भी जो है 10 साल से बढ़ के वो 12 साल हो जाएगा, क्योंकि वो एडिशनल बेनिफिट दिया है फॉर फूड एंड एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स। नाउ कमिंग टू एरियाज, अभी ये डिस्ट्रिक्ट हम लोगों ने एक समराइज किया है कि औरंगाबाद, छत्रपति संभाजीनगर जो है उसमें का कुछ पोर्शन डी में आता है, कुछ पोर्शन D+ में आता है। बट जैसे मैंने पहले बताया कि विदर्भ और मराठवाड़ा ये पूरा रीजन उन्होंने 80+ में दिया है। जैसे आप ऊपर देखोगे D 50% है, D+ 60% है, बट एक्सक्लूसिवली मराठवाड़ा उन्होंने 80% में दिया है। तो इरिस्पेक्टिव औरंगाबाद डी में आ रहा है, D+ में आ रहा है, हम लोगों को यहाँ पे बेनिफिट जो है छत्रपति संभाजीनगर में इट इज 80%, और फूड और एग्रो प्रोसेसिंग आएगा दैट वुड बी 100%। सेम विद जालना, बीड, ये सारे मराठवाड़ा के आ गए हैं, परभनी, हिंगोली, लातूर, नांदेड़। उसके में जैसे हम लोग, मैंने बताया था कि मुंबई ग्रुप ए जो है, ग्रेटर मुंबई, थाने, ये इंडस्ट्रियली काफी डेवलप्ड है, थाने, कल्याण, भिवंडी ये एरिया, तो वहां पे उन्होंने बेनिफिट सारे निकाल दिए। फिर उसके में जो थोड़े से उससे कम थे, नासिक का कुछ पोर्शन है, निफाड़, सिन्नर है, उन्होंने उसको ग्रुप सी, ग्रुप डी इस तरह से उन्होंने दिया है। उन्होंने ये भी देखा है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट के कौन से तालुका में इंडस्ट्रियल कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, जहां कम है उन्होंने उनको एडिशनल बेनिफिट दिया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर नासिक देखे, नासिक सिटी उन्होंने क्लासीफाई किया है बी ग्रुप में, निफाड़ और सिन्नर उन्होंने क्लासीफाई किया है सी में, डिंडोरी, योला, इगतपुरी उन्होंने क्लासीफाई किया है डी में, और वेल क्लासीफाई किया उन्होंने D+ में। तो आप जैसे जैसे जो इंडस्ट्रियली जहाँ पे कम इंडस्ट्रीज है अगर आप वहां जाते हो तो आपको बेनिफिट एक्स्ट्रा मिलेगा।
तो यही जो मैं बता रहा था कि अगर कोई आपका कोई कस्टमर अगर नासिक में कर रहा है तो हम उसको निफाड शिफ्ट कर सकते हैं, निफाड में कर रहा है तो उसको योला शिफ्ट कर सकते हैं, जिससे उसको बेनिफिट एक्स्ट्रा मिले इन टर्म्स ऑफ इंसेंटिव। वैसे पालघर हो गया, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट हो गया, ये इन्होंने यहाँ पे क्लासिफिकेशन दिया हुआ है A B C D, इस तरह से आपको इंसेंटिव बेनिफिट्स मिलेंगे। रत्नागिरी सिंधुदुर्ग ये भले ही C D में है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि इनको ओरिजिनली इनको क्लासिफाई किया है 80% सब्सिडी के लिए। अभी नाउ नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट इज द प्रोसेस टू ऑब्टेन दी PSI सब्सिडी। हम कैसे इसके लिए अप्लाई कैसे करें? भाई पता है हम लोगों को यूनिट डालना है, अभी शुरू कैसे करें? भाई हमने यूनिट आइडेंटिफाई कर लिया, हमने स्टडी कर लिया कि भाई मेरे को यहाँ पे ज्यादा बेनिफिट मिलेंगे, हमने सोच लिया। नाउ व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? पहला है कि आपको लैंड लेना पड़ेगा, आइदर इट कुड बी MIDC लैंड और इट कुड बी फ्री होल्ड लैंड। अगर MIDC लैंड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका डायरेक्ट MIDC से आपको अलॉटमेंट चाहिए उस पर्टिकुलर लैंड का। अगर कोई और थर्ड पर्सन है ABC, अगर वो लैंड ऑलरेडी MIDC ने ABC को अलॉट किया हुआ है और आप उससे अगर ले रहे हो तो दैट इन्वेस्टमेंट इन लैंड वोंट बी एलिजिबल फॉर द सब्सिडी पर्पस। अगर आपको डायरेक्ट MIDC से आता है, डायरेक्ट लीज डीड आपके नाम पे बनता है पहला, तो ही आप वो MIDC की प्रॉपर्टी जो आपने लैंड के लिए जो पेमेंट किया है, जो आपने एक्सपेंसेस किया है, वो आपका एलिजिबल रहेगा। एज फार एज फ्री होल्ड प्रॉपर्टी इज कंसर्न, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी में आपने जो भी पैसा दिया है वो आपका एलिजिबल रहता है फॉर दी फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी में आपको प्रॉपर उसको NA करा के लेना पड़ेगा फ्रॉम द रिस्पेक्टिव अथॉरिटी, स्टेट अपना जो कलेक्टर अप्रूव्ड NA होते हैं, NA 44 है, आपको वो कलेक्टर अप्रूव्ड NA लेना पड़ेगा फॉर द फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। उसके अंदर कंस्ट्रक्शन परमिशन आता है। कंस्ट्रक्शन परमिशन अगर आपका फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है तो आपका टाउन प्लानिंग आ जाएगा, और अगर आपका MIDC है तो आपको MIDC से अप्रूवल लेना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन परमिशन के लिए। नाउ अगेन अगर आप MIDC की प्रॉपर्टी ले रहे हो जहां पे ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, उसका BCC ऑलरेडी आ चुका है, बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट, इन दैट केस आपको ना लैंड का कॉस्ट ना कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट, ये जो आप ऑलरेडी जो हो चुका है उसका आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा फॉर द इंसेंटिव। हाँ, अगर आपने लैंड खरीदा है, BCC आपके नाम पे होता है MIDC से, अगर आपने लैंड थर्ड पार्टी से MIDC की प्रॉपर्टी खरीदी है और BCC आपके नाम पे होता है, तो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जो आपने एक्सपेंसेस क्लेम किया है वो आपका एलिजिबल होगा। और फ्री होल्ड प्रॉपर्टी में तो आपका लैंड कॉस्ट भी इंक्लूडेड है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी इंक्लूडेड है, सब्जेक्ट टू उसको प्रॉपर सिटी टाउन प्लानिंग से अप्रूवल मिल जाए और आपका जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है वो अप्रूवल के बेसिस पे ही चल रहा है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इन दिस, अभी इसमें एक बीच में एक रह गया कि आप जब लैंड एक्वायर कर रहे हो तो आप स्टैम्प ड्यूटी एग्जम्पशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। आप जब फ्री होल्ड प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो ऑन रजिस्ट्री आपको स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ता है। आपको डीड ऑफ असाइनमेंट या लीज डीड जब होता है MIDC से, जब भी आपको स्टैम्प ड्यूटी पे करना है, इफ यू आर होल्डिंग अ वैलिड उद्यम सर्टिफिकेट एंड इफ यू आर अ MSME एंटरप्राइज, तो आप स्टैम्प ड्यूटी एग्जम्पशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। स्टैम्प ड्यूटी एग्जम्पशन क्या होता है कि जब आप रजिस्ट्री कर रहे हो या लीज डीड कर रहे हो, उसके ऊपर जो आप स्टैम्प ड्यूटी पे कर रहे हो वो आपको पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कैसे होगा कि आपको अप्लाई करना पड़ेगा रिस्पेक्टिव DIC ऑफिस में फॉर दी एग्जम्पशन सर्टिफिकेट। एग्जम्पशन सर्टिफिकेट आपको DIC ऑफिस इशू करने के बाद में आपको जाना पड़ेगा रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स में, रजिस्ट्रार ऑफ स्टैम्प पे, वहां पे आपको उसको एडजुडिकेट करा के लेना पड़ेगा। और एडजुडिकेट कराने के बाद में आपको वो स्टैम्प ड्यूटी भरने की जरूरत नहीं, आपको खाली जो रजिस्ट्री के कॉस्ट रहेगा, जो भी अराउंड 30,000 कुछ रजिस्ट्री का कॉस्ट होता है, उतना ही आपको पे करना है। तो स्टैम्प ड्यूटी एग्जम्पशन ये एक पहली चीज है जो MSME को मिल सकता है राइट फ्रॉम प्लानिंग स्टेज। अगर हम लोग करते हैं तो स्टैम्प ड्यूटी एग्जम्पशन भी हम उसमें क्लेम कर सकते हैं, और स्टैम्प ड्यूटी भी हैवी रहता है, इट्स अराउंड 7%। एरिया वाइज डिफर हो सकता है, पर एक जनरली 6 to 7% एक स्टैम्प ड्यूटी का आप पे कर दो ऑन दी वैल्यूएशन। तो अगर समझो हम 2 करोड़ की अगर कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं और उस पर अगर स्टैम्प ड्यूटी अगर 7% है, तो वी हैव पेइंग 14 lakhs ऑफ स्टैम्प ड्यूटी टू द गवर्नमेंट। वही अगर हम MSME है और इफ यू गो प्रॉपर प्लानिंग से अगर हम लोग करें तो हम लोग स्टैम्प ड्यूटी एग्जम्पशन ले सकते हैं, जिससे कर रहे हैं कि मतलब हम लोग स्टैम्प ड्यूटी जो 14 करोड़ का हम लोग जो एक्सपेंस आउट कर रहे थे, वो हम लोगों का कैश आउटफ्लो उतना बच जाएगा। नाउ द नेक्स्ट स्टेप कम्स वेयर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स गेट इन्वॉल्व, कि प्रिपरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट रिपोर्ट, कि जहाँ प्रोजेक्ट है उसका सारा अप्रेजल बनाए, सारा सब कुछ तैयार करें, फाइनेंशियल प्रोजेक्शन डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट पूरा हम तैयार करें। हम लोग उसको बैंक फाइनेंस के लिए अप्लाई करें, जहाँ हम लोग टर्म लोन अप्लाई करके लिए। बैंक फाइनेंस के लिए क्यों अप्लाई करना है? जब हम लोग कोई नया प्रोजेक्ट डालते हैं तो नए प्रोजेक्ट में क्या होता है कि आपको कॉस्ट
जो आपका है प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है वो आपको अप्रेजल करा के लेना होता है कि हाँ ये जो आपने बोला है कि मैं लैंड में इतनी इन्वेस्टमेंट है, कंस्ट्रक्शन में इतनी इन्वेस्टमेंट है, प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट इतनी है, XYZ करके हुए ये टोटल इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ की है। ये कौन DIC ऑफिस को कौन बताएगा कि ये 10 करोड़ जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बराबर है? मैं तो अगर मेरा 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है और मैं मेरे अगर सर्टिफिकेट पे चल रहा है एज ए एंटरप्रेनर, नॉट एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज ए एंटरप्रेनर कि मैं 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, देर इज हैज टू बी सम एजेंसी थर्ड पार्टी जो वो सर्टिफाई करे कि हाँ ये 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हुई है। तो वो कैसे सर्टिफाई होगा? दैट विल बी सर्टिफाइड बाय अ बैंक जहां से हम लोग फाइनेंस ले रहे हैं। और अगर हम बैंक से नहीं ले रहे हैं फाइनेंस, दैट ऐसा नहीं है कि अगर आप बैंक फाइनेंस नहीं ले रहे तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दी सब्सिडी। आपको ये आपका प्रोजेक्ट सर्टिफिकेट जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है, सारा जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, ये आपको सीकॉम या अलग एजेंसीज जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने फिक्स की है उनके पास जाके आपको ये सारा अप्रेस करा के लेना पड़ेगा। एज गुड एज जैसे आप बैंक फाइनेंस कर रहे हो तो आपको वैसे सीकॉम को अप्रोच करना पड़ेगा, आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट अप्रेस करके लेना पड़ेगा। एंड देन जब सीकॉम से आपको सर्टिफिकेट आएगा कि यस द कॉस्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इज 10 करोड़, बेस्ड ऑन दैट DIC उसका काम शुरू करेंगे। उनके लिए फिर वो बेसिस पे उनका फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो आपको बेस मिलेगा उनको, जिसके बेसिस पे वो सब्सिडी आपका डिसाइड करेंगे। उसके बाद में MPCB पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का आपको कंसेंट टू एस्टेब्लिश लेना पड़ेगा स्टार्टिंग में, एंड देन कंसेंट टू ऑपरेट वंस द यूनिट इज स्टार्टेड। आपको कंसेंट टू एस्टेब्लिश के बाद में जो है आपका जैसे ही शुरू होता है तो आपको 30 डेज के अंदर आपको अप्लाई करना होगा DIC को, डिपेंडिंग अपॉन आपका क्वांटम कितना है, वो आगे हम उस पर बात करेंगे। प्रोजेक्ट कॉस्ट में क्या होता है कई बार कि हम लोग जब प्रोजेक्ट कॉस्ट बनाते हैं, कस्टमर बहुत ज्यादा पर्टिकुलर नहीं होता है, वो एक लमसम मोटा मोटा वो डिसाइड किया होता है कि भाई हाँ मेरे को ये मशीन्स लेना है। बट जब इम्प्लीमेंटेशन शुरू होता है तो और वो बेसिस पे हम लोगों ने बैंक फाइनेंस अप्रूवल करा के ले लिया होता है। अभी यहाँ क्या होता है कि कई बार कि मैंने फॉर एग्जांपल मैंने बोली कि मेरी 2 करोड़ की प्लांट एंड मशीनरी है और जब प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट हो रहा है तो मुझे पता चल रहा है कि यार और कुछ मशीन है जो मेरे को साथ में लेना जरूरी है, पर मेरे ऑलरेडी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में वो नहीं है। तो इन दैट केस हम लोग क्या करते हैं कि वो तो मशीनरी जो है वो आउट ऑफ ओन सोर्सेस हम लोग परचेस कर लेते हैं। बैंक को हम अप्रोच करते हैं, हम लोग एक CS सर्टिफिकेट बनाते हैं। CS सर्टिफिकेट में क्या होता है कि ये प्रोजेक्ट कॉस्ट तो था, प्लस इन एडिशन टू दैट हम लोगों ने और ये एडिशनल इन्वेस्टमेंट करी है और वो CS सर्टिफिकेट में हम लोग उसको सर्टिफाई करके देते हैं। बैंकर वो CS सर्टिफिकेट को बेस पकड़ता है, प्लस जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट हम लोग बात कर रहे हैं उसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लेके आपको रिवाइज्ड अप्रेजल सर्टिफिकेट देता है, जिससे कि आपका जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है, अगर मैंने प्रोजेक्ट कॉस्ट 5 करोड़ का दिया है और अगर मेरी मशीनरी की कॉस्ट और कुछ बाद में बढ़ जाती है जो मैं खुद मेरे ओन सोर्सेस से मैं पे करके ले रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो मेरा ओरिजिनल प्रोजेक्ट में नहीं है तो मेरा वो लैप्स हो जाएगा, मेरे को उस पर ऊपर सब्सिडी नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके लिए हम लोग CS सर्टिफिकेट देके बैंक से रिवाइज्ड अप्रेजल लेते हैं और वो अप्रेजल के बेसिस पे, रिवाइज अप्रेजल के बेसिस पे हम लोग DIC को अप्लाई करते हैं। एक बार अप्लाई करने के बाद में हम लोगों को DIC से EC आता है, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, जो जिसमें कि हम लोगों का कितना प्रोजेक्ट कॉस्ट था, कितना एलिजिबल हुआ। कई सारी चीजें होती है कि जो प्रोजेक्ट में आपके एलिजिबल नहीं है, जिसके ऊपर आपको गवर्नमेंट सब्सिडी दे नहीं सकता है, तो वो अगर प्रोजेक्ट कॉस्ट का पार्ट है तो वो उतना वो इनएलिजिबल करके उसको बाहर करते हैं और फिर एलिजिबल जितना हमारा है प्रोजेक्ट कॉस्ट वो बेसिस पे हम लोगों को सर्टिफिकेट देता है कि भाई आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट 10 करोड़ था, यस पूरा 10 करोड़ एलिजिबल है, एंड नाउ वी ग्रांट यू एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट फॉर 10 करोड़। ये सर्टिफिकेट आने के बाद में ये हो गया एक पार्ट। उसके बाद में सेकेंड पार्ट शुरू होता है कि हर साल, जैसे मैंने पहले बताया कि आपका टेन्योर होता है 7 ईयर्स से लेके 10 ईयर्स तक का, हर साल फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद में विद सम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, सर्टिफिकेट्स एंड उनके फॉर्मेट्स वो सारा फिल करके, DIC का सारे फॉर्मेट्स फिल करके हम लोग हमारे क्लेम सबमिट करते हैं टू द DIC। ये हो गया एक ओवरऑल अप्रोच कि PSI की सब्सिडी के लिए हम लोग किस तरह से अप्रोच करते हैं, मतलब स्टार्ट कहाँ से होता है और EC आने तक क्या क्या चीजें करनी पड़ेगी हम लोगों को। नाउ अब ये इंसेंटिव हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या क्या इंसेंटिव्स हम लोगों को मिलते हैं। हम लोगों को जो इंसेंटिव्स मिलते हैं, पहला है स्टैम्प ड्यूटी एग्जम्पशन, जो हमने ऑलरेडी बताया कि परचेस ऑफ लैंड, फ्री होल्ड लैंड है उसकी परचेस कर रहे हैं, उस पर स्टैम्प ड्यूटी हम पे कर रहे हैं तो वो मिलेगा। अगर हम लोग MIDC से ले रहे हैं तो लीज डीड रजिस्टर्ड करना है,
या डीड ऑफ असाइनमेंट रजिस्टर्ड करना है तो उसके लिए भी हम लोगों को बेनिफिट मिलेगा। सबसे बड़ा बेनिफिट जो हम लोगों को गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र दे रही है दैट इज SGST, स्टेट GST पेएबल ऑन सेल्स। अभी इसके लिए भी क्राइटेरियाज अलग अलग किए हैं, मतलब MSME के लिए अलग है, आगे हम देखेंगे LSI स्पेशल LSI उनके लिए क्राइटेरियाज अलग है फॉर कैलकुलेशन ऑफ स्टेट GST जिसके ऊपर वो एलिजिबल होते हैं। इंटरेस्ट सब्सिडी ऑन टर्म लोन ये एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है जहाँ पे हम लोगों का कैपिटल इंटेंसिव अगर यूनिट है और हम लोगों का टर्म लोन कंपोनेंट बहुत बड़ा है तो हम लोगों को इंटरेस्ट सब्सिडी भी मिलती है, जो हम लोग इंटरेस्ट पे कर रहे हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को तो उसके ऊपर भी हम लोगों को सब्सिडी मिलती है। उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ है, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी पे हम लोगों को एग्जम्पशंस मिलता है। फिर अगर हम लोग ये कई सारे हम लोगों को कॉस्ट एंड मतलब कॉस्ट बेनिफिट एक एनालिसिस एक ये दिया हुआ है, उन्होंने बेनिफिट दिया हुआ है कि सब्सिडाइज रेट पे हम लोग इलेक्ट्रिकल जो हमारा ऑडिट होता है वो हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद में एफिलेंट ट्रीटमेंट प्लांट हम लोग सेटअप कर सकते हैं। उसके बाद में वाटर ऑडिट, ये कई सारी आगे की चीजें हैं जो हम लोग इसमें एलिजिबल होते हैं इफ यू गेट द EC। ये जो हम लोग बास्केट की बात कर रहे हैं दिस इज ओवरऑल पूरा बास्केट। ये जो हम लोग पैकेज स्कीम ऑफ इंसेंटिव जो हम लोग बोल रहे हैं कि भाई आप 80% एलिजिबल हो, अगर मेरी 10 करोड़ का अगर मैं फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट है और 80% में अगर एलिजिबल हो तो 80% यानी 8 करोड़ रुपए हो गया। ये 8 करोड़ स्टैम्प ड्यूटी एग्जम्पशन अगर बाजू में निकाल दूं तो SGST, इंटरेस्ट, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, टैरिफ, ये सारा मिला के मेरा 8 करोड़ तक का मेरे को बेनिफिट मिलेगा पूरा मिला के, सब्जेक्ट टू माई रेवेन्यू, मैं कितना सेल्स कर रहा हूं। हम आगे वो चीज पे आएंगे कि वो कैलकुलेशंस कैसे होते हैं। अभी ये हो गया न्यू यूनिट के लिए। नाउ व्हाट इज एक्सपेंशन? एक्सपेंशन जैसे मैंने बताया कि आपका एग्जिस्टिंग यूनिट है, वहां पे आप कुछ मशीनरीज आप बढ़ा रहे हो तो उसके लिए आपको वो भी बेनिफिट मिलता है अंडर दिस स्कीम, सब्जेक्ट टू कि आपका वो एक्सपेंशन जो है वो 1 अप्रैल 2019 के बाद होना चाहिए। और उसके लिए फिर से सेम प्रोसीजर है, हम लोगों को DIC को अप्लाई करना पड़ता है विथ रिस्पेक्ट सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करके कि हम लोगों ने क्या इन्वेस्टमेंट करी है। अगर बैंक फंडिंग नहीं लिया है तो अगेन वी हैव टू अप्रोच टू सीकॉम कि वो प्रोजेक्ट को सप्रेस करके दे और वो बेसिस पे हम लोगों को उसको एक्सपेंशन का हम लोगों को EC मिल जाए फ्रॉम DIC। अभी एक्सपेंशन की कुछ कंडीशंस है जो हम लोगों को फुलफिल करना होगा फॉर क्लेमिंग द बेनिफिट। फर्स्ट, द टोटल इन्वेस्टमेंट जो है, इन्वेस्टमेंट इन द सेंस इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, हमारा ग्रॉस ब्लॉक है प्लांट एंड मशीनरी का जो हमने ओरिजिनली इन्वेस्ट किया था। नाउ वी आर गोइंग इनटू एक्सपेंशन। मेरा ओरिजिनल ग्रॉस ब्लॉक है समझो 10 करोड़ का, अभी मैं एक्सपेंशन कर रहा हूँ तो मेरा जो एक्सपेंशन है प्लांट एंड मशीनरी का ग्रॉस ब्लॉक मेरा 10 करोड़ है तो मेरा जो एक्सपेंशन मैं कर रहा हूँ दैट शुड बी नॉट लेस देन 2.5 करोड़, 25% से कम नहीं होना चाहिए जो मेरा इमीडिएट पिछला ग्रॉस ब्लॉक है। अभी अगर मेरा 10 करोड़ है और अगर मैं 2 करोड़ का ही एक्सपेंशन कर रहा हूं तो वो एक्सपेंशन ट्रीट नहीं होगा। इसमें सेकंड क्राइटेरिया है कि आपका कैपेसिटी इनहांस होना चाहिए, तभी तो आप मशीन बढ़ा रहे हो। मशीन बढ़ाओगे तो आपकी कैपेसिटी इनहांस होगी, आपकी एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी। अभी कैपेसिटी इंक्रीज होगी ये कहां से क्लियर होगा? इसके लिए हम लोगों को हर एक्सपेंशन में हम लोगों को MPCB को अप्लाई करना पड़ता है। MPCB पहला हम लोग एप्लीकेशन करते हैं कंसेंट टू एस्टेब्लिश कि जहां हम बोलते हैं कि हम ये यूनिट सेटअप करना चाहते हैं। यूनिट सेट होने के बाद में जब शुरू करते हैं तो कंसेंट टू ऑपरेट आता है कि नाउ यूनिट इज एस्टेब्लिश, नाउ वी आर स्टार्टिंग द यूनिट। ये कंसेंट टू ऑपरेट में हम लोग देते हैं कि हमारी क्या कैपेसिटी है, कौन से प्रोडक्ट्स हम बना रहे हैं, उनकी ईयरली कैपेसिटी कितनी है, वो सारा ब्यूरो उसमें आता है। कंसेंट टू एस्टेब्लिश, कंसेंट टू ऑपरेट का जो सर्टिफिकेट आता है उसमें। जब हम एक्सपेंशन के लिए जा रहे हैं तो हमको फिर से अप्लाई करना पड़ता है MPCB को, जहां हमारा कि हम लोग एक्सपेंशन में जा रहे हैं और मिनिमम 25% से कैपेसिटी हमारी बढ़नी चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू द प्रोडक्शन। तो अगर मैंने पहले बताया कि मैं 10,000 यूनिट बनाने वाला हूँ साल के, तो एक्सपेंशन अगर कर रहा हूँ तो मेरे को कम से कम वो 2,500 यूनिट से ज्यादा मेरा एक्सपेंशन हो रहा है, मतलब 2,500 से ज्यादा मेरी कैपेसिटी बढ़ रही है, प्रोडक्शन कैपेसिटी, ये मेरे को वहां पे प्रूव करना होगा। तो वो देने के बाद में मेरे को जब MPCB का सर्टिफिकेट मिलता है कंसेंट टू ऑपरेट का फॉर एक्सपेंशन, वहां आता है कि ओरिजिनल इतना एक्सपेंशन मतलब न्यू एडिशनल लिमिट्स इतनी है, एडिशनल जो प्रोडक्शन ग्रोथ करेंगे वो इतनी है एंड टोटल प्रोडक्शन तो ये 25% से ज्यादा होना चाहिए। तो आप जो कंडीशन है एक्सपेंशन की फॉर क्लेमिंग द इंसेंटिव आप वो सेटिस्फाई करते हो, क्योंकि ये जो MPCB का कंसेंट टू ऑपरेट का जो सर्टिफिकेट है
ये हम लोगों को जब एक्सपेंशन का हम जो प्रपोजल सबमिट करते हैं डीआईसी में, ये हमको कंपलसरी उसके साथ में देना होता है, बिकॉज दैट इज द बेसिक टूल कि जिसपे से वो समझ सके कि हाँ ये जो एक्सपेंशन है इसमें इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी भी इंक्रीज हो रही है। कमिंग टू नेक्स्ट, हु आर द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज। माइक्रो एंड स्मॉल के लिए डीआईसी ऑफिस होता है। माइक्रो एंड स्मॉल के लिए मतलब क्या हो गया कि जहाँ इन्वेस्टमेंट आपका इन प्लांट एंड मशीनरी अप टू 5 करोड़, ये आपको डीआईसी ऑफिस पे आता है। मतलब आपके वहाँ पे जीएम होते हैं जो आपका प्रोजेक्ट अप्रेस करते हैं, मतलब सारा स्टडी करेंगे और ही हैज अ पावर टू गिव यू एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट इसी। अगर आपकी प्लांट एंड मशीनरी की इन्वेस्टमेंट इज मोर देन 5 करोड़, नाउ अब जो इन्वेस्टमेंट की हम बात कर रहे हैं दैट इज बेसिक, जीएसटी कंपोनेंट इसमें इंक्लूड नहीं होता है। अगर वो 5 करोड़ से ज्यादा है और 50 करोड़ के अंदर है तो ये आपका जाता है जॉइंट डायरेक्टर के पास में, जेडीआई, जॉइंट डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज। ये रीजनल पोस्ट है जहाँ पे ये जाएगा। नो ही विल बी द अथॉरिटी कि आप वो सारा आपका फाइल स्टडी करके, सारा पेपर स्टडी करके ही विल हैव अ पावर टू इशू एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट कि आप कितने सब्सिडी के लिए एलिजिबल हो। नाउ इन केस आपका इन्वेस्टमेंट इज मोर देन 50 करोड़, ये सारा आपका प्रपोजल जाएगा हेड ऑफिस मुंबई। तो यहाँ इन्वेस्टमेंट अगर मोर देन 50 करोड़ से तो ये हेड ऑफिस जाएगा। अगर 5 करोड़ से 50 करोड़ के बीच में है तो जेडीआई के पास जाएगा, और 5 करोड़ के नीचे तो डीएसी जाएगा। डीएसी हर डिस्ट्रिक्ट पे है, जेडीआई रीजनल लेवल पे है, हेड ऑफिस इज एट मुंबई लेवल। तो डिपेंडिंग कि आपका कितना इन्वेस्टमेंट है, आपका इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन रहेगा वो क्लियर होगा। ये हुआ 2019 के बारे में। अभी इसमें और एक चीज है कि 2019 में जो है आपको जब आप कोई प्रोजेक्ट डालते हो, आप कोई नया यूनिट शुरू कर रहे हो, तो आपको पीरियड दिया गया है 3 इयर्स का। आपको ये 3 इयर्स के पीरियड में आप कितनी इन्वेस्टमेंट करने वाले हो, आपको इनिशियल आपके इसमें जब आप एप्लीकेशन करते हो डीआईसी में, आपको वहां देना है। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी एक नया एक प्रोजेक्ट शुरू कर रहा हूँ, मेरे कस्टमर है, नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं और उनका है कि भाई मैं 10 करोड़ के भी इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। तो एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हम लोगों ने ये भी समझ के लेना चाहिए कि 10 करोड़ तो आज इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, पर अगले 3 साल में उनका कुछ एक्सपेंशन, कुछ और इन्वेस्टमेंट का प्लान है क्या। अगर वो बोलते कि हाँ हम और अगले 2 साल में हम और 5 करोड़ का एडिशनल उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, प्लांट एंड मशीनरी में बढ़ाएंगे या कंस्ट्रक्शन में बढ़ेगा या और कुछ नया टेक्नोलॉजी लाएंगे, तो वी शुड मेक श्योर कि हम लोग जब एप्लीकेशन कर रहे हैं डीआईसी में, तो डीआईसी में एप्लीकेशन करते वक्त हमने 3 साल का पीरियड लेना है फ्रॉम पहला जिस दिन हम अप्लाई कर रहे हैं वहां से अगले 3 साल, कि हम लोग इसको 15 करोड़ का हमारा इन्वेस्टमेंट रहेगा। ये क्यों करना है, अगर समझो हमने 15 करोड़ नहीं किया और हमने 5 करोड़ ही किए, 10 करोड़ ही बताया, तो ये जो आगे का जो आएगा 5 करोड़ जो इन्वेस्ट कर रहे हैं दैट विल बी ट्रीटेड एज अ एक्सपेंशन, जिसमें हमारा सब्सिडी कम हो जाएगा, राइट। अगर हम लोग ये 3 साल का पीरियड अगर उनको बताते तो दैट विल बी ट्रीटेड एज द ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, जहां हम लोगों का पूरा, हम लोगों को जो बेनिफिट मिलना है, जैसे हम लोगों ने देखा है तालुका वाइज जो बाइफरकेशन किया है, तो उसमें पूरा 80% है तो 80% पूरा बेनिफिट मिलेगा। तो अगर ये प्लानिंग प्रॉपर नहीं रही तो अननेसेसरी 25% का सब्सिडी इंसेंटिव लॉस होगा कोई भी एंटरप्रेन्योर का। तो ये जब हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, जब हम लोग कोई प्रोजेक्ट क्लाइंट अगर बात कर रहे हैं, तो हम लोगों ने ये चीज का ध्यान देना है कि तब कितना कर रहा है उस पर ना ध्यान देते हुए अगले 3 साल में और कुछ उसका एक्सपेंशन का प्लान है क्या, वो सारा कंसिडर करके ही हम लोगों ने डीएससी में एप्लीकेशन करना है। अगर हम लोगों ने बोला है कि हमारा 15 करोड़ का इन्वेस्टमेंट रहेगा अगले 3 साल में, और हमारा वो 15 करोड़ का इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, और अगर हमारा 12 करोड़ का ही इन्वेस्टमेंट हुआ, तो वी विल बी एलिजिबल फॉर द सब्सिडी ऑन 12 करोड़ ऑफ रुपीज। पर अगर हम बोलते 15 करोड़ का करेंगे और अगर हमने 20 करोड़ का कर दिया, तो ऊपर का 5 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारा ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट में नहीं जाएगा। फिर उसमें वापस से एक्सपेंशन के आपके कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं क्या, प्लांट एंड मशीनरी का जो ओरिजिनल ग्रॉस ब्लॉक है उससे 25% ज्यादा जा रहा है क्या, वो सारे कंडीशंस अप्लाई हो गए। और अगर वो हमारा 25% से ज्यादा अगर एक्सपेंशन नहीं हो रहा है, मतलब प्लांट एंड मशीनरी से 25% ज्यादा नहीं जा रहा है, तो ये 5 करोड़ का जो हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ये हमारा कुछ काम का नहीं रहेगा, ये मतलब हम लोग बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए जब प्लानिंग कर रहे हैं तो हम लोगों ने ये प्लानिंग करते वक्त ही बहुत आराम से, ना तब की सोचते हुए कि अभी कितना कर रहे हैं, उसके अलावा हम लोगों ने क्लाइंट से बात करके कि अगले 3 साल का क्या होरिजन है, वो हिसाब से हम लोगों ने प्लान करना चाहिए। एक्सपेंशन जैसे मैंने बताया था कि एक्सपेंशन में आपका जो भी एलिजिबल, आप जो कैटेगरी में आपका यूनिट आता है A B C D, और आप जितना एलिजिबल हो
50%, 60%, 80%। तो अगर एक्सपेंशन होता है तो जितना आप एलिजिबल हो उसका 25% हो जाएगा आपका बेनिफिट। अगर आप 80% हो और अगर आप उसमें एक्सपेंशन में जाते हो तो आपको बेनिफिट 80% का 75%, दैट कम्स टू 64%। इस तरह से आपका वो सब्सिडी आपको एक्सपेंशन के केस में आपको कम मिलेंगी। जब हम फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, ईसी की बात कर रहे हैं, तो ईसी फॉर एग्जांपल, जैसे पहला ही एग्जांपल अपन फिर से कैरी करते हैं। अगर ईसी में बोल रहा हूँ कि मेरे को 10 करोड़ का ईसी मिला है एंड आई एम सेटिंग अप माय यूनिट इन संभाजी नगर, so I am eligible for 80% of the subsidy which will be allowed for me and tenure allowed to me is 10 years। तो मैं 10 करोड़ का 80% हो गया मेरा 8 करोड़, और वो मेरे को अलाउड है फॉर 10 years। मतलब मेरी मैक्सिमम जो कैपिंग है दैट इज 80 lakhs पर ईयर। जो हमने बताया था कि आपका स्टैम्प ड्यूटी एग्जम्पशन छोड़ के हमने बाकी जो पूरा एक पॉट तैयार किया था, जिसमें आपका स्टेट जीएसटी आ गया, उसमें आपका इंटरेस्ट सब्सिडी आ गया, उसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी आ गया, इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ आ गया, ये सारा मिला के मैं 80 lakhs का मेरा टोटल पुट टुगेदर 80 lakhs का बकेट बनेगा। ऐसा नहीं है कि स्टेट जीएसटी अलग है, इंटरेस्ट अलग है, ये नहीं है। वो पूरा बकेट मिला के मेरा 80% जो बनेगा, 80 lakhs जो बनेगा, दैट इज ऑल पुट टुगेदर। इसके अलावा अगर सपोज मैं सेम छत्रपति संभाजी नगर में मैं कोई एग्रो प्रोसेसिंग या फूड प्रोसेसिंग यूनिट डाल रहा हूँ, तो मेरे को 100% एलिजिबल हो जाता हूँ। तो 10 करोड़ का मेरा प्रोजेक्ट है तो मैं 10 करोड़ का पूरा एलिजिबल हो जाऊंगा सब्सिडी के लिए। 10 years के बजाय आई विल गेट एडिशनल 2 years, सो द टोटल टेन्योर व्हिच आई विल बी गेटिंग विल बी 12 years। सो 12 साल में मेरे को फिर से 10 करोड़ डिवाइड बाय 12 years अराउंड 83 lakhs मेरे को हर साल बेनिफिट मिलेगा इसमें इन दी सब्सिडी। सो और उसमें ही अगर एक्सपेंशन जाता हूँ तो फिर से 75% ऑफ 100%, दैट इज 80%, वो मेरा एक्सपेंशन में हो जाएगा। रीजन बीइंग मैं फूड या एग्रो प्रोसेसिंग में जाता हूँ। ये जो एक्सपेंशन में हम लोगों को 80% का बेनिफिट मिलता है ऑन दी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। अगर ओरिजिनल में मेरे को अगर 80% बेनिफिट है तो एक्सपेंशन में मेरे को 80 का 80% बेनिफिट मिलेगा, भले फिर वो नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग रहो या फूड एग्रो रहो। फूड एग्रो रहेगा तो 100% का 80% मिलेगा, नॉर्मल रहेगा तो 80% का 80% मिलेगा। दिस इज हाउ इट गोज। नाउ 2019 से हर 5 साल में एक स्कीम अनाउंस होता है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से। 2024 में वी वेर वेटिंग फॉर द स्कीम, जो कि 2025 में वो स्कीम आया। ये स्कीम ऑलरेडी कैबिनेट में डिस्कशन हो चुका है, बट इलेक्शन कोड की वजह से फॉर्मल अप्रूवल आया नहीं है। होपफुली बाय जैन एंड या मिड ऑफ फरवरी वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये स्कीम भी फॉर्मली अनाउंस हो जाएगा। तो एक बार वो जब अनाउंस होगा तो उसका जीआर हम लोगों को जब मिलेगा, सो देयर विल बी अ फाइन ट्यूनिंग की कई सारे यूनिट्स ऐसे रहेंगे जो 2025 में शुरू हुए। नाउ ऑलरेडी वी आर स्टैंडिंग इन 2026, so the unit which have started their installation in 2025, उनका क्या रहेगा, whether they will be eligible for 2024 or whether they will be eligible for 2025 पॉलिसी। तो ये सारा जो GR रहेगा तब ये चीज के ऊपर क्लैरिटी आएगी। मीनवाइल पॉलिसी 2020 हम लोग उसके ऊपर एक बात कर लेते हैं। 2025 की पॉलिसी के पीछे जो विजन है, जैसे ऑलरेडी हम लोगों ने पहले बात किया कि एमएसएमई एक बहुत बड़ा सेक्टर है हमारे जीडीपी का, एक्सपोर्ट्स का। नाउ गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र इज प्लानिंग फॉर 1 ट्रिलियन USD इकोनॉमी बाय 2030। इसके लिए उन्होंने जो एमएसएमई की डेफिनेशन वाइड कर दी, उनको बेनिफिट ज्यादा दे रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसका बेनिफिट ले सके और ज्यादा से ज्यादा नए एंटरप्रेन्योर्स तैयार हो सके। जिस तरह से विकसित भारत में हम लोग 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं USD की, वैसे ही महाराष्ट्र भी बात कर रहा है 5 ट्रिलियन USD इकोनॉमी बाय 2047। उसके बाद में स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग सेटअप की बात हो रही है। उसके बाद में जॉब्स, ज्यादा से ज्यादा जॉब क्रिएट कर सके इनटू, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रखा है 2025 की पॉलिसी डिजाइन करते वक्त।
और उसके में ग्रोथ एंड स्मूथ बिजनेस एनवायरनमेंट की, और इसके साथ में ही इनोवेशंस कैसे, जैसे ईवी है, ईवी से रिलेटेड सर्विस, आपके चार्जिंग स्टेशन है, इनके मैन्युफैक्चरिंग को हम लोग कैसे यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट दे सके। तो ऐसे कई सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए ये विजन बना है फॉर PSI 2025। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने PSI 2019 एक स्कीम है, ऐसे कई सारे अलग अलग स्कीम्स गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने डिफाइन करी है, नए नए स्कीम्स लेके आए हैं स्पेसिफिकली फॉर सम स्पेसिफिक सेक्टर्स, जो कि बहुत लेंदी है, हम लोग अभी उसको कवर नहीं कर पाएंगे ये सब चीजों में। पर हर एक स्कीम अपने आप में एक बहुत बड़ा स्कीम है। जैसे टूरिज्म पॉलिसी एक लेके आया है 2024 में, फिर उसके में IT एंड ITS एनेबल्ड जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है उनके लिए अलग से एक स्कीम लेके आया है। तो PSI और वो दोनों में आप कंपेयर करोगे, आपको जिसमें ज्यादा बेनिफिट मिलेगा यू कैन ऑप्ट फॉर दोस। नाउ व्हाट वर द प्रपोज्ड चेंजेस, अभी जो ये किया है सारा इसमें, जैसे हमने पहले बात किया है कि प्लांट एंड मशीनरी का पहले जो था दैट वाज माइक्रो के लिए जो किया था वो 2.5 करोड़ का था, 1 करोड़ का था, जो कि बढ़ा के 2.5 करोड़ कर दिया। स्मॉल के लिए जो पहले 2.5 करोड़ था वो अभी 5 करोड़ किया है। एंड जो मीडियम के लिए पहले 25 करोड़ था वो 125 करोड़ किया है इन्वेस्टमेंट, 50 करोड़ का 125 किया है। तो ये कुछ MSME के डेफिनेशंस में चेंज लाया है, जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स को MSME के दायरे में ला सको और बेनिफिट्स ले सके। सबसे बड़ा जो चेंज PSI 2025 में किया है वो है तालुका क्लासिफिकेशन और उनको दिए गए इंसेंटिव्स के इसमें। जैसे हम लोगों ने पहले देखा है कि पैकेज स्कीम ऑफ इंसेंटिव 2019 में जो बेनिफिट्स दिए थे उसमें A कैटेगरी जो था, जो मुंबई और सराउंडिंग एरियाज जो थे वहां पे कोई बेनिफिट नहीं थे, उन्होंने सारे बेनिफिट्स वहां से निकाल लिए थे। गोइंग फर्दर इन 2025 गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने जो प्रपोज किया है कि कैटेगरी A यानी मुंबई और सराउंडिंग में भी उन्होंने 30% ऑफ दी फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट उसको बेनिफिट देने का उन्होंने फाइनल किया है। बट द इंसेंटिव पीरियड इज ओनली फॉर 5 years which was previously 0. Now coming down to category B, it was earlier it was 30%, now it has been increased to 40%. C में पहले it was 40%, now it has been increased to 50%. D में it was earlier it was 50%, now increased to 60%. D plus में it was 60%, now increased to 70%. हर जगह पे उन्होंने 10% का हाइक किया है फॉर दी बेनिफिट्स टू द MSME। और एक कैटेगरी के जो क्लासिफिकेशन एरिया है उस पे उन्होंने, जहां पहले कोई बेनिफिट नहीं था, वहां पे उन्होंने 30% का बेनिफिट दिया है। खाली इंसेंटिव पीरियड उन्होंने 5 years का रखा है, B और C के लिए 7 years का रखा है, और उसके नीचे उन्होंने 10 years का रखा है। विदर्भ, मराठवाड़ा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, ये जो एरिया, जलगांव, ये इसमें उन्होंने कोई चेंज नहीं किया। वो 80% पहले भी था, आज भी 80% है। और जो नो इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट था और जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, धाराशिव है, गढ़चिरौली है, नंदुरबार है, ये लोगों को उन्होंने 100% जो पहले था वही अभी भी उन्होंने रखा है, उसमें उन्होंने कोई चेंज नहीं किया है। अभी यहाँ तो बेनिफिट्स बढ़ाए हैं परसेंटेज में, इससे ज्यादा एक और बहुत बड़ा बेनिफिट जो उन्होंने 2025 में प्रपोज किया है दैट इज स्पेशल कैटेगरी इंसेंटिव। स्पेशल कैटेगरी इंसेंटिव क्या है? स्पेशल कैटेगरी इंसेंटिव है कि जहां आपको एडिशनल 10% ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी आपको बेनिफिट दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल, फिर से हम लोग आते हैं, छत्रपति संभाजी नगर में मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, मैं नया यूनिट डाल रहा हूँ। मेरे यूनिट में मेरा टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है 10 करोड़ का, जिसमें मेरा प्लांट एंड मशीनरी का इन्वेस्टमेंट है 6 करोड़ का। तो अभी ये लोग कैसे करेंगे कि प्लांट एंड मशीनरी का कॉस्ट 6 करोड़ का है, उसको वो स्टेप अप करेंगे 10% से, दैट विल बी 6.6 करोड़, और उसके ऊपर फिर मेरे को बेनिफिट मिलेगा। सो ऑन द सेम इन्वेस्टमेंट हम लोगों को एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है इन 2025 एज कंपेयर टू 2019। फिर से बोल रहा हूँ, ये 2025 दिस इज प्रपोज्ड, ऑलरेडी पास्ड इन कैबिनेट। मुझे नहीं लगता कि बहुत कुछ चेंजेस इसमें आएंगे, बट हाँ, जब तक फाइनल GR या फाइनल अप्रूवल आता नहीं है मिनिस्ट्री से, तब तक पॉसिबली देयर आर चांसेस कि कुछ चेंजेस आए।
ये जो 10% का एडिशनल बेनिफिट्स दिया है आपको फॉर प्लांट एंड मशीनरी, पर इसमें एक सब्जेक्ट दिया है कि दैट क्यूमुलेटिव कैप विल बी 120%। 120% क्यों? जैसे हम मैं वापस से अपन बात करते हैं कि मेरे को नो इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट में 100% का बेनिफिट है, अगर वहाँ पे मैं फूड एंड एग्रो डालता हूँ तो मेरे को एडिशनल 20% मिलेगा। तो वो केस में मेरा ये जो 10% का प्लांट एंड मशीनरी का है वो सारा मिलके 120% होगा। ऐसा नहीं होगा कि वो 120% प्लस ये 10%, वैसा नहीं होगा। ओवरऑल टोटल कैपिंग 120% ऑफ फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अभी ये चीज का बेनिफिट लेने के लिए दे हैव गिवन सम कंडीशन, कुछ क्राइटेरियाज उन्होंने रखे हैं, जैसे कि द यूनिट शुड बी फुल्ली ओन्ड बाय वुमन एंटरप्रेनर और SC/ST एंटरप्रेनर और अ पर्सन विथ डिसेबिलिटी and deploying minimum 50% of their workforce in the form of woman or a SC/ST employee or person with disability। ये कंडीशन एक सेटिस्फाई होना चाहिए। और आपका यूनिट जो है D+ या बिलो मराठवाड़ा, विदर्भ या इमर्जिंग डिस्ट्रिक्ट या एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो हम लोग बात कर रहे हैं उसमें आना चाहिए। तो आप ये 10% जो बेनिफिट एडिशनल प्लांट एंड मशीनरी का है उसके लिए आप एलिजिबल होते हो, सब्जेक्ट टू 120% कैपिंग। सेकेंड या थर्ड उसमें दिया है उन्होंने कंडीशन, एक यूनिट जो प्रायोरिटी सेक्टर में काम कर रहे हैं हर 1 करोड़ के पीछे 10 लोगों का डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। यानी अगर आप 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपके पास कम से कम 100 लोगों का एम्प्लॉयमेंट आपके पास जनरेट होना चाहिए, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जो आपकी कंपनी में जॉब करे, जो आपके पेरोल पे रहे। ऐसे डायरेक्ट 10 एम्प्लॉयमेंट आपके ऐसे जनरेट होना चाहिए, तो भी आप ये 10% एडिशनल 10% प्लांट एंड मशीनरी पे जो इंसेंटिव है यू आर एलिजिबल फॉर इट। सो दिस इज अ वेरी वेलकम स्टेप जो पहले 2019 या 2013 में कहीं नहीं था। दिस इज एडिशनल बेनिफिट व्हाट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र इज गिविंग टू MSME एंटरप्रेन्योर्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स उसमें आए, ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग सेटअप हम तैयार कर सके और GDP ग्रोथ में जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का जो एक सोच है कि उनको 1 ट्रिलियन इकोनॉमी तक जाना है वो वहां तक पहुंच सके। नाउ ये हो गया माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम का। अभी इसमें आता है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। अब लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज यानी क्या है? जैसे हमने देखा कि मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए उन्होंने 125 करोड़ का प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट कैपिंग रखा है कि 125 करोड़ तक आप मीडियम में रहोगे। अभी अगर मेरा इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इज मोर देन 125 करोड़, तो उसके लिए क्या? तो उसके लिए उन्होंने दिया है कि वो स्पेशल LSI, स्पेशल लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में आप कैटेगराइज किए जाओगे। अगेन उसमें भी उन्होंने क्राइटेरिया दिया है कि रीजन वाइज, एरिया वाइज उन्होंने दिया है कि मिनिमम कितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, मिनिमम कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट होना चाहिए और आपको कितना उसमें इंसेंटिव मिलेगा, कितने साल के लिए मिलेगा। नाउ अगर मैं विदर्भ मराठवाड़ा की बात करता हूँ, छत्रपति संभाजी नगर में इफ आई वांट टू सेट अप अ लार्ज स्केल इंसेंटिव तो मेरा मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो होना चाहिए दैट शुड बी 200 करोड़। मेरा मिनिमम डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जो होना चाहिए दैट शुड बी मिनिमम 150 पर्सन। तो आई विल बी एलिजिबल फॉर 90%। अगर आपको याद हो तो विदर्भ मराठवाड़ा ये जो कैटेगरी था, यहाँ पे नॉर्मल माइक्रो स्मॉल मीडियम में हम लोग 80% पे थे, यहाँ पे हम लोगों को 90% एडिशनल बेनिफिट मिला जा रहा है क्योंकि बड़ा यूनिट सेटअप हो रहा है। बड़ा यूनिट जब सेटअप होगा तो उसके साथ में एंसिलरी छोटे यूनिट सेटअप हो गए जिनको उनका अलग से बेनिफिट मिलेगा। सो बड़ा यूनिट सेट हो रहा है तो आसपास में नए इंडस्ट्री डेवलप होंगी और एक्स्ट्रा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, ये हिसाब से उनको एडिशनल बेनिफिट दिया है। सो if I'm setting a large scale industry in Chhatrapati Sambhajinagar, I am eligible for 90% of the fixed capital incentive। अगर मैंने 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है तो 180 करोड़ का मेरे को बेनिफिट मिलेगा। वो जो बेनिफिट मिलेगा वो बेनिफिट सेम वैसी है जो हमने माइक्रो और स्मॉल में देखा था। इंसेंटिव पीरियड वहां पे मेरे को 10 ईयर्स का था, यहाँ पे मेरे को 9 ईयर्स का है। और बाकी A, B, C में उन्होंने कैटेगराइज किया है। ए में 750 करोड़ का, क्योंकि वहां अगर कोई यूनिट आ रहा है तो कोई ना कोई बड़ा ही यूनिट रहेगा, तो उन्होंने वो हिसाब से उनका क्वालिफाइंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट है उसका क्राइटेरिया भी बढ़ा रखा है और जो मिनिमम एम्प्लॉयमेंट जो जनरेट करना चाहिए उसका भी क्राइटेरिया बढ़ा रखा है। और जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे वो क्राइटेरिया उन्होंने कम किए, क्योंकि नई इंडस्ट्री को नए लोकेशन पे जहाँ पे इंडस्ट्री कम है, जहाँ बेनिफिट ज्यादा मिल सके, इसलिए उन्होंने जैसे जैसे आप नीचे आओगे तो आपको बेनिफिट ज्यादा दिखेंगे ताकि A और B, C यहाँ पे ज्यादा इंडस्ट्री कॉन्सेंट्रेट ना करे और बेनिफिट एडिशनल उनको मिल सके। तो ये है लार्ज स्केल इंसेंटिव जहाँ पे आपका मिनिमम क्राइटेरिया दिया है उन्होंने कि आप 125 करोड़ के ऊपर अगर आपका हो जाता है तो आप लार्ज स्केल इंसेंटिव में आप क्वालिफाई करोगे।
इसके बाद में आता है आपका मेगा एंड अल्ट्रा मेगा। अभी मेरा 200 करोड़ के ऊपर चला गया, तो मैंने क्या करना है, 200 करोड़ से 300 करोड़ के 350 करोड़ के बीच में चला गया, तो उन्होंने मेगा एंड अल्ट्रा मेगा एक दो अलग कैटेगरी डिफाइन करी है, जहाँ पे बहुत बड़े यूनिट्स अगर आप लगा रहे हो तो कैसे। वो केस में उन्होंने मिनिमम कितना आपका फिक्स इन्वेस्टमेंट होना चाहिए वो भी डिफाइन किया है, और मिनिमम एम्प्लॉयमेंट कितनी जनरेट होना चाहिए वो भी दिया है। वो केस में अगर फिर से हम छत्रपति संभाजीनगर का अगर हम एग्जांपल कंसीडर करें, तो हमारा मिनिमम क्वालिफाइंग फॉर मेगा यूनिट्स, मिनिमम क्वालिफाइंग फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो होना चाहिए दैट इज 350 करोड़। 350 करोड़ के ऊपर अगर मेरा इन्वेस्टमेंट जाता है तो आई एम क्वालिफाइड फॉर अ मेगा एज अ मेगा यूनिट। वही अगर मेरा इन्वेस्टमेंट मोर देन 1000 करोड़ जाता है तो आई एम क्वालिफाइड एज अ अल्ट्रा मेगा यूनिट। वहां पे मेरे को बेनिफिट्स अलग है, वहाँ रेट टेप वेलकम रहता है मिनिस्ट्री में, और बेनिफिट्स म्यूचुअली डिसाइड होके आगे बढ़ते हैं। सो माइक्रो हो गया जहाँ पे इन्वेस्टमेंट कम है, उससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट स्मॉल में हो गया, उससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट मीडियम में हो गया, मीडियम से ज्यादा जब हमारा इन्वेस्टमेंट इज मोर देन 125 करोड़ इन प्लांट एंड मशीनरी तो हम क्वालिफाई करते हैं लार्ज स्केल के लिए, जहाँ पे हम लोगों ने देखा कि हम लोगों का मिनिमम जो लार्ज स्केल के लिए हम लोगों को जो क्राइटेरिया है दैट इज 200 करोड़। मेरा 350 करोड़ तक अगर इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो आई एम क्वालिफाइड एज अ मेगा, और जब मेरा 1000 करोड़ तक अगर मिनिमम मेरा इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो आई एम क्वालिफाइड एज अ अल्ट्रा मेगा। बेनिफिट्स क्या है हम लोग अभी देखते हैं। अभी ये जो प्रपोज्ड जो हमारा 2025 का जो स्कीम है, इसमें एमएसएमई, एलएसआई, स्पेशल एलएसआई, यहाँ पे बेनिफिट्स हम लोगों को दिए हैं हर एक इसमें। स्टैम्प ड्यूटी जो हम लोगों ने बात करी थी कि आपका एमआईडीसी में हम जब लैंड एक्वायर करते हैं तो तब का स्टैम्प ड्यूटी है, या फ्री होल्ड प्रॉपर्टी हम एक्वायर कर रहे हैं तो उसकी रजिस्ट्री का स्टैम्प ड्यूटी है, तो उसके एग्जम्पशंस भी हम लोगों को मिलते हैं, जैसे पहले था वो अभी भी है। अभी उन्होंने किया है कि ए और बी में जो है वो 50% किया है क्वांटम। अगर स्टैम्प ड्यूटी मेरे को 50 लाख का आ रहा है और आई एम सेटिंग अप यूनिट इन बी कैटेगरी एरिया, तो मेरे को 25 लैक्स का स्टैम्प ड्यूटी एग्जम्पशन मिलेगा, 25 लैक्स मेरे को पे करना पड़ेगा। वेरेज इन सी डी प्लस नीचे के जो एरियाज है वहाँ पे मेरे को 100% एग्जम्पशन है। ये जो स्टैम्प ड्यूटी है ये लैंड एक्विजिशन के लिए एक बार मिलता है, वापिस से उसमें नहीं मिलेगा। हाँ, फिर से आपका तालुका चेंज होगा तो दैट विल बी ट्रीटेड एज अ न्यू यूनिट, तो आपको फिर से आप एलिजिबल हो, फॉर इन सेम तालुका नहीं। सेकेंड आपको बेनिफिट है इसमें इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी का, विच इज अप टू 100%। यहाँ पे कोई कैपिंग नहीं है। सी डी प्लस में आपको मिलेगा, और वो आपको कब तक मिलेगा, जितना आपका इंसेंटिव पीरियड है, 7 ईयर्स, 9 ईयर्स, 10 ईयर्स, या फूड और एग्रो बेस्ड या फूड इंडस्ट्री है तो एडिशनल 2 ईयर्स, 10 + 2 दैट इज 12 ईयर्स। ये हो गया आपका एमएसएमई, एलएसआई, स्पेशल एलएसआई सभी में। अभी इसमें ग्रुप ए और बी अगर है आपका कैटेगरी एरिया ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो वहां पे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट को मिलेगा इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी का, और दूसरा जो वुमन यूनिट जो फुल्ली ओन्ड बाय वुमन, एससी/एसटी एंटरप्रेन्योर और पर्सन विद डिसेबिलिटी, एंड साथ ही में अगर वो 50% वर्कफोर्स सेम कैटेगरी का रहे तो आपको वो बेनिफिट मिलेगा। अगर आपका यूनिट ए और बी कैटेगरी में है तो वहां पे आपको इंसेंटिव वो मिलेगा 7 ईयर्स के लिए, एंड वो खाली स्पेशल एलएसआई के लिए, वहां पे माइक्रो स्मॉल के लिए नहीं है वो बेनिफिट। अब इंडस्ट्रियल प्रमोशन, सबसे बड़ा जो बेनिफिट अगर हम लोग पूरी किट्टी की बात करते हैं, पूरी बास्केट की बात करते हैं, तो सबसे बड़ा बेनिफिट जो मिलता है इंसेंटिव के फॉर्म में, जो रिकवरी आती है एज ए एंटरप्रेन्योर, वो आती है स्टेट जीएसटी के फॉर्म में। अभी स्टेट जीएसटी में पहले इन्होंने माइक्रो स्मॉल एमएसएमई के लिए अलग किया था कि उन्होंने जितना आप सेल्स पे कलेक्ट कर रहे हो स्टेट जीएसटी उतना आप पूरा एलिजिबल हो, जबकि एलएसआई एंड स्पेशल एलएसआई के लिए वो बेनिफिट नहीं था, उनके लिए कैलकुलेशंस बहुत अलग थे, वहां पे उनका बेनिफिट बहुत कम हो जाता। दैट वाज ऑन नेट जीएसटी पेड जो हम लोगों को बेनिफिट मिलता था। दिस इज अ वेरी वेलकम स्टेप इन 2025 की, जहां उन्होंने सभी को एक लाइन में कर दिया, वेदर इट इज एमएसएमई, एलएसआई और स्पेशल एलएसआई, एवरीवन विल गेट 100% ऑफ ग्रॉस एसजीएसटी, मतलब जो आप सेल्स पे आपका जो एसजीएसटी कलेक्ट कर रहे हो उसका आपको पूरा बेनिफिट मिलेगा, डिपेंडिंग अपॉन दी योर इंसेंटिव पीरियड एंड योर कैपिंग। जैसे आपको पर एनम, जो मैंने बताया कि पर एनम आपका एक कैपिंग होता है कि टोटल आप 10 करोड़ एलिजिबल हो और 10 साल के लिए हो तो आपको कैपिंग 1 करोड़ का है, तो आप 1 करोड़ से ज्यादा आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो वैसा जो भी कैपिंग आपको अप्लीकेबल रहेगा डिपेंड्स अपॉन योर एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, वो आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ये एक
चीजें जहाँ LSI, जहाँ इन्वेस्टमेंट बड़े यूनिट्स में आ रही है, वो लोगों को भी एक एडिशनल बेनिफिट मिल जाता है कि वो उनका जो इंसेंटिव है वो काफी जल्दी रिकवर कर सकते हैं और उनको पूरा इंसेंटिव रिकवर कर पाएंगे। पहले क्या था कि LSI, स्पेशल LSI में जो उनके कैलकुलेशंस थे वो इतने ज्यादा कमरसम थे कि उनको पूरा बेनिफिट मिल ही नहीं पाता था। सो दिस इज अ वेलकम स्टेप इन 2025 स्कीम, जहाँ LSI, स्पेशल LSI को पूरा बेनिफिट मिलता है। उन्होंने एक और एक एडिशनल इंसेंटिव दिया है यहाँ पे कि 50% ऑफ द प्रोविडेंट फंड जो हम लोग भर रहे हैं, EPF जो भर रहे हैं, उसका हम लोगों को बेनिफिट मिलेगा। D+ अदर जैसे जैसे नीचे होगे तो उसमें हम लोगों को 5 करोड़ तक का बेनिफिट मिलेगा। जो हम लोगों को एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन जो हम लोग दे रहे हैं उसमें 5 करोड़ तक का बेनिफिट मिलेगा, बट ड्यूरेशन इज ओनली फॉर 5 years, सब्जेक्ट टू कि भाई आपका जो यूनिट है वो हर 1 करोड़ के पीछे 20 जॉब तैयार कर रहा है। तो ये बेनिफिट हम लोगों को मिलेगा। अगर स्पेशल LSI यूनिट है D+ या नीचे के जोन में, तो उसको 10 करोड़ का कैपिंग किया है कि 10 करोड़ तक का उसको बेनिफिट मिलेगा। सेम फॉर एवरी 1 करोड़ 20 जॉब्स उसने जनरेट करना चाहिए वो यूनिट ने, एवरी 1 करोड़ ऑफ द इन्वेस्टमेंट। दिस इज फॉर स्पेशल LSI। MSME और LSI के लिए ये 5 करोड़ का कैपिंग दिया है। इसके अलावा कैपिटल सब्सिडी एक दिया है उन्होंने, विच इज अप टू 20%। पहले क्या था कि वुमन एंटरप्रेन्योर है, तो वुमन एंटरप्रेन्योर को मैं छत्रपति संभाजी नगर में अगर यूनिट डाल रहा हूँ और नॉर्मल कोई एंटरप्राइज, अगर मैं नॉर्मल कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल रहा हूँ, तो आई एम एलिजिबल फॉर 80% ऑफ द फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है। अगर वुमन एंटरप्रेन्योर रहेगा तो उसको 20% एडिशनल मिलता था, दैट कम्स टू 100%। अभी उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने एक अलग से कैपिटल सब्सिडी दे दी है विच इज अप टू 20% ऑफ योर FSI, फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है, और उसको कैपिंग दिया है 25 करोड़ का। तो इसमें क्या क्या एलिजिबल है आपका, जो यूनिट C, जो यूनिट्स आपके D+ और बिलो में आते हैं, तो 100% ऑफ योर लैंड, कॉस्ट ऑफ योर लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ये कंपोनेंट मिला के अप टू 20% या मैक्सिमम अप टू 25 करोड़ ये कैपिंग दिया हुआ है। ये मेरे को मिलेगा ड्यूरिंग द इंसेंटिव पीरियड। मेरा इंसेंटिव पीरियड 10 साल का है और मैं अगर 10 करोड़ का मेरा फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्वालिफाई हो रहा है तो 2 करोड़ है, तो 2 करोड़ मेरे को 10 साल में, यानी हर साल मेरे को 20-20 लाख रुपए मिलते रहेंगे। अदर देन, मतलब ये जो GST का बेनिफिट है उसके अलावा ये कैपिटल सब्सिडी मुझे मिलेगा। एंड दिस स्कीम इज एप्लीकेबल फॉर MSME एंड LSI। जैसे हम ऊपर की इसमें जाते हैं, C में जाते हैं, तो दैट इज ओनली 80% ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। वहां पे लैंड और बिल्डिंग का वैल्यू नहीं पकड़ा जाता है क्योंकि लैंड कॉस्ट ऑलरेडी हायर है। उसके ऊपर हम जाते हैं A और B कैटेगरी में जाते हैं, तो दैट इज 50% ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। वहां पे लैंड बिल्डिंग नहीं पकड़ा जाता है क्योंकि ऑलरेडी काफी महंगा है, तो वो उसके ऊपर कोई बेनिफिट देते नहीं है, क्योंकि जो भी बेनिफिट आना है, जो भी प्रोडक्शन होना है, प्लांट एंड मशीनरी से है, तो मशीनरी को बेस पकड़ के उन्होंने उनके इंसेंटिव डिफाइन किए वहां पे। तो ये स्पेसिफिक एक नया कैपिटल सब्सिडी के फॉर्म में एक नया इंसेंटिव दिया है इन्होंने। इसमें एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है तो मिनिमम उसका 50% एक्सपोर्ट होना चाहिए, इस तरह से उन्होंने दिया है क्राइटेरिया। प्लस यूनिट्स फुल्ली ओन्ड बाय वुमन एंटरप्रेन्योर या SC/ST पर्सन और फिजिकली डिसेबल पर्सन, और साथ ही में उसमें सेम 50% क्राइटेरिया वर्कफोर्स का एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। ये क्राइटेरिया दिया है उन्होंने फॉर दिस कैपिटल सब्सिडी। उसके अलावा पावर टैरिफ सब्सिडी एक है। पावर टैरिफ सब्सिडी जो है दैट इज 1 रुपी पर यूनिट, जो कि D+ में 1 करोड़ रुपया है फॉर 3 years फॉर MSME एंड LSI, और वही D+ और नीचे के इसमें 1.5 करोड़ रुपए है फॉर स्पेशल LSI, क्योंकि यूनिट बड़ा है तो वहाँ पे पावर कंजम्पशन भी ज्यादा रहता है। इसके अलावा ये जो इंटरेस्ट सब्सिडी दिया है, तो ये आपको 5%। अब ये कैलकुलेशन कैसे होता है, मैंने बैंक में अप्लाई किया है फॉर लोन, मेरे को बैंक ने लोन दिया है एट द रेट ऑफ 9%, और मेरा टर्म लोन है 10 करोड़ का। अभी 10 करोड़ के ऊपर 9% में अगर पकड़ता हो तो मेरा इंटरेस्ट कॉस्ट हो गया 90 लाख रुपीज। अभी 9% के लिए 90 लाख है, तो 5% के लिए कितना हो गया 50 लाख। तो मेरा जो टोटल किटी बन रहा है, जैसे मैंने बताया कि अभी मेरा अगर फॉर एग्जांपल टोटल किटी मेरा 1 करोड़ का है साल का, तो उसमें से 50 लाख तक का मेरे को इंटरेस्ट के फॉर्म में सब्सिडी मिलेगा। 50 लाख तक का मैं बाकी सब ले सकता हूँ, पावर टैरिफ हो गया, स्टेट GST हो गया, ये जो चीजें, ये सब मिला के मेरा 50 लाख।
इन एनी कॉस्ट ये पूरा मिला के मेरा 1 करोड़ का जो किटी है, सीलिंग लिमिट जो दिया है मेरे को, टोटल सब्सिडी डिवाइडेड बाय एलिजिबिलिटी पीरियड, तो पर ईयर जो मेरा लिमिट दिया हुआ है, ये इंटरेस्ट, स्टेट जीएसटी, पावर टैरिफ, ये सब मिला के लिमिट दिया हुआ है। तो जहाँ कैपिटल इंटेंसिव यूनिट है, जहाँ हमारा स्टार्टिंग में कैपिटल बहुत ज़्यादा है और टर्नओवर धीरे धीरे बिल्ट हो रहा है, तो स्टार्टिंग में जो हम लोगों को जो बेनिफिट मिलना है इन द फॉर्म ऑफ इंसेंटिव, वो इंटरेस्ट सब्सिडी के फॉर्म में मिलेगा। जैसे जैसे टर्नओवर बढ़ेगा तो स्टेट जीएसटी उसको कवर करेगा और रिपेमेंट होता चलेगा, तो इंटरेस्ट कंपोनेंट हमारा कम होगा, तो फिर वो फिर से मेकअप होते चलेगा। सो दिस इज अ इंटरेस्ट सब्सिडी दैट इज बीइंग गिवन बाय गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र इन PSI 2025। ये 2019 के स्कीम में भी था, सेम 5% पर एनएम के हिसाब से ही वो बेनिफिट था। इसके अलावा R&D इनोवेशन के लिए उन्होंने सब्सिडी किया है कि भाई आप कुछ R&D कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो उसके लिए उन्होंने कुछ क्राइटेरिया डिफाइन करे कि कितने अमाउंट तक वो देंगे, तो उसका कैपिंग 30 करोड़ तक दिया है। और वो जो आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो दैट उसका भी क्राइटेरिया दिया है कि वो 2% ऑफ योर एनुअल टर्नओवर, मैं अगर 100 करोड़ का टर्नओवर कर रहा हूँ तो मैं 2 करोड़ तक का R&D और इनोवेशन उनके क्राइटेरिया में जो बैठता है उसका मैं बेनिफिट ले सकता हूँ। सो ये भी स्कीम अप्लीकेबल है। ये भी चीज अप्लीकेबल है फॉर ऑल MSME, LSI, स्पेशल LSI। ये हो गया। उसके अंदर एक प्रोडक्शन लिंक सब्सिडी अवेलेबल है जो कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स के लिए है अक्रॉस ऑल द रीजन्स, वो A रो, B रो, C रो, D रो, D+ एनी जोन। तो वहाँ पे मेरे को अप टू 10% ऑफ FSI, उसको मैक्सिमम कैपिंग दिया है 1 करोड़ का। वहाँ पे मैं एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स के लिए मेरे को ये बेनिफिट मिलता है एंड द टेन्योर फॉर दिस इज 5 years। ये MSME रहो या LSI रहो, वो सबके लिए एप्लीकेबल है, सबके लिए बेनिफिट है। अभी MSME के इसमें नॉट ओनली MSME मतलब मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग या होलसेल बिजनेस आता है, इसमें सर्विस सेक्टर भी कवर होता है। इस साल ये 2025 के इसमें इन्होंने सर्विस सेक्टर को भी काफी इंपॉर्टेंस दिया है और उनको भी वो PSI का बेनिफिट एक्सटेंड किया है। अभी सर्विस सेक्टर में क्या आता है कि जो भी आप नए IT यूनिट आ रहे हैं, IT इंडस्ट्री आ रही है, आप नया IT सेटअप कर रहे हो, GCC आ रहा है, अभी तो काफी अब ग्रोइंग है, तो ऐसा कुछ आप कर रहे हो तो उसके लिए आपको आप सर्विस सेक्टर में क्लासीफाई होगे और उसके लिए आपको पैकेज स्कीम ऑफ इंसेंटिव 2025 जो प्रपोज्ड है उसमें आपको बेनिफिट दिया है। अब ये बेनिफिट कौन से बेसिस पे दिया है? इट इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ एम्प्लॉयर्स, नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट व्हाट यू आर जनरेटिंग। तो MSME की अगर हम स्पेसिफिक बात करें तो उसमें उन्होंने दिया है कि A या B कैटेगरी तो आपका 350 मिनिमम एम्प्लॉयमेंट रहना चाहिए, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट रहना चाहिए। C में 250 एम्प्लॉयमेंट रहना चाहिए, D में 150, D+ में 125। सेम जैसा वहां पे विदर्भ, मराठवाड़ा ये रीजन अलग किया था, यहाँ पे भी वो अलग किया। और यहाँ पे अगर 100 लोग भी अगर आप एम्प्लॉय कर रहे हो इन दिस पर्टिकुलर कैटेगरी तो यू आर एलिजिबल। या नो डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे मेरा या एस्पिरेशनल है, नंदुरबार है, वाशिम है, ये जगह पे अगर मैं कर रहा हूँ, गढ़चिरौली है, वहाँ पे अगर कर रहा हूँ तो वहाँ खाली अगर मैं 50 लोगों के साथ मिलकर अगर कोई नया सर्विस सेक्टर में अगर कोई चीज सेटअप कर रहा हूँ और मेरे डायरेक्ट एम्प्लॉय अगर 50 लोग भी है, सो आई एम एलिजिबल फॉर दी स्कीम। अब इस स्कीम में बेनिफिट क्या है मुझे? स्कीम में बेनिफिट ऐसे है कि मेरा जो मेजरली यहाँ पे जो होता है कि आपका प्रोविडेंट फंड जाएगा एम्प्लॉयज का, तो जो एम्प्लॉयज का कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है, अप टू 50% तक का हम लोगों को इसमें बेनिफिट मिलता है। उसमें क्लासिफिकेशन दिया उन्होंने कि D+ में आपका जॉब जो आपके एम्प्लॉयर्स है, एम्प्लॉयज है, उसको 50,000 पर मंथ से ज्यादा पेमेंट चाहिए। C कैटेगरी में आपको 75,000 से ज्यादा पर मंथ का उसको पगार चाहिए। और A और B कैटेगरी में 1 लाख रुपए पर महीने से ज्यादा उनका पगार रहना चाहिए। तो आप ये जो 50% का जो एम्प्लॉयर्स PF कंट्रीब्यूशन का जो बेनिफिट है, आप उसमें बेनिफिट ले पाओगे। ये कितने साल के लिए दिया है? ये 5 साल के लिए दिया है। सेम जैसा हम लोगों को स्टैम्प ड्यूटी एग्जम्पशन था वहां पे MSME के लिए जहां हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप कर रहे थे, सेम वैसे ही हम लोगों को स्टैम्प ड्यूटी एग्जम्पशन यहाँ पे भी है फॉर सेटिंग अप अ सर्विस इंडस्ट्री। क्योंकि सर्विस इंडस्ट्री अगर मेरे को शुरू करना है तो मेरे को कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा या मेरे को ऑफिस प्रीमाइसेस लेना पड़ेगा, तो उसकी भी स्टैम्प ड्यूटी का एग्जम्पशन मुझे मिलता है। ये अल्ट्रा और मेगा, अल्ट्रा मेगा को ही अप्लीकेबल है ये स्टैम्प ड्यूटी एग्जम्पशन। उसमें उन्होंने दिया है कि आप कौन से कैटेगरी में जा रहे हो। अल्ट्रा और मेगा अल्ट्रा में क्या है कि आप उसके एम्प्लॉयमेंट का डेफिनेशन अलग दिया है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की डेफिनेशन अलग दिया है, और वो CD उसके नीचे के एरिया में वो 100% बेनिफिट देते हैं और A और B में वो 50% बेनिफिट दे रहे हैं स्टैम्प ड्यूटी एग्जम्पशन का। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एग्जम्पशन का भी बेनिफिट है जो हम लोगों को लाइट बिल पे लग के आता है, क्योंकि मेजर रॉ मटेरियल, मेजर जो एक्सपेंस पार्ट है
एम्प्लॉय सैलरी छोड़ने के बाद में इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी आता है वहाँ पे हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आता है। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी पे हमारे को 100% अप टू 100% हम लोगों को दिया है बेनिफिट, इसमें कोई कैपिंग नहीं दी है। CD में ये 5 साल तक हम लोगों को बेनिफिट मिलेगा, जो भी इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी बिल पे लग के आ रहा है वो सारा हमारे को बेनिफिट मिलेगा। और A और B कैट क्लासिफिकेशन जो एरिया है वहाँ पे 3 साल का हम लोगों को ये बेनिफिट मिलेगा। ये एक सर्विस सेक्टर के लिए उन्होंने दिया है। इसके अलावा रेंटल लीज सब्सिडी उन्होंने एक अलग से एक किया है कि पहले 20 यूनिट्स हर डिस्ट्रिक्ट वाइज उनको वो बेनिफिट दिया है उन्होंने। स्किलिंग सब्सिडीज, जहाँ आप नए स्किल्स आप डेवलप कर रहे हो स्टाफ में, उनके स्किल अपग्रेड कर रहे हो, उसके लिए जो आप खर्चा कर रहे हो उसका बेनिफिट उन्होंने दिया है। कैटेगरी वाइज वो भी, एरिया रीजन वाइज वो भी अलग अलग करा है उन्होंने। उसके अलावा R&D या इनोवेशन पे अगर हम लोग कुछ कर रहे हैं सर्विस सेक्टर में, तो वो एक बेनिफिट हम लोगों को एक एडिशनल दिया है यहाँ पे। और उसमें फिर से जैसे वहाँ पे MSME के इसमें था कि 2% ऑफ द टोटल टर्नओवर था, वैसे सेम यहाँ पे भी दिया है इन्होंने। 2% ऑफ द टोटल टर्नओवर हमारा कोई लिमिट दी है। टेन्योर सब में अलग अलग है। रेंटल लीज सब्सिडी में 5 years का है। स्किलिंग, जहाँ आप स्किल डेवलप कर रहे हो वहाँ पे भी आपको 5 years का है। R&D जो कि एक लंबा टेन्योर चलता है, इनोवेशन कोई भी एकदम से नहीं होता है, तो उसके लिए उन्होंने 10 years का रखा है। तो ये हुआ सर्विस सेक्टर के हद तक। ये प्रपोजल जो अप्रूवल के लिए गया था कैबिनेट के पास में 2025 का, उसका एक जिस्ट आपको दिखाया है यहाँ पे। अब ये सब चीजों में एज अ CA हम लोगों का काम कहाँ से शुरू होता है, हाउ वी कैन ग्रो आवर प्रैक्टिस इन दिस न्यू एरिया। एक एडवाइजरी है, जैसे मैंने बताया कि क्लाइंट को बताना, एक्सप्लेन करना कि क्या पॉलिसीज है। कई सारे क्लाइंट होते हैं कि सब कर देते हैं और फिर आते हैं हमारे पास, तो हम लोग उनको बेनिफिट नहीं कर पाते, उतना बेनिफिट जितना वो एलिजिबल है उतना बेनिफिट दिला नहीं पाते। तो वो केस में अपने क्लाइंट से आप डिस्कस कीजिए कि ऐसे ऐसे पॉलिसीज है। अगर वो कुछ नया यूनिट प्लान कर रहा है, कुछ एक्सपेंशन प्लान कर रहा है, या वो कुछ लोकेशन सिलेक्ट कर रहा है, अगर हम वो लोकेशन, जैसे मैंने बताया कि एरिया क्लासिफिकेशन जो है, अगर वो कुछ चेंज करने से उसको एडिशनल बेनिफिट मिलता है, तो दैट ऑल्सो सर्विसेज वी कैन प्रोवाइड एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट टू आवर क्लाइंट्स। उसके अंदर प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, भले ही वो फाइनेंस लेना चाहे ना चाहे, अगर वो आउट ऑफ ओन सोर्सेस भी कर रहा है तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट तो हमको बनाना है, क्योंकि प्रोजेक्ट अप्रेस हमको करना पड़ेगा। अगर फाइनेंस नहीं ले रहे तो सिकॉम से करना पड़ेगा, उसके लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट तो हमको बनाना ही है। तो दिस इज एडिशनल एरिया। सब्सिडी जब हम लोग अप्लाई करते हैं, DIC में हम लोग जब अप्लाई करते हैं, भले ही वो DIC रहो, GDI रहो या HO रहो, उनके कई सारे एप्लीकेशन फॉर्म्स है जो कि प्रॉपरली हम लोगों को फिल करके, इवेल्युएट करके हम लोगों को करना पड़ेगा, जिससे कि बेनिफिट, मैक्सिमम बेनिफिट कैसे क्लाइंट को मिल सके वो हमको देखना है। उसके अलावा एक बार EC आ गया, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, मैंने अप्लाई किया, मेरा EC आ गया, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट आ गया कि भाई मेरे को 10 करोड़ का सब्सिडी सैंक्शन हो गया। पर ये सब्सिडी सैंक्शन होने के बाद में ये मिलेगा कैसे, इसके लिए हमको हर साल क्लेम फॉर्म देने पड़ते हैं, जिसमें हमारे कई सारे उनके फॉर्म्स है, प्री डिफाइंड कुछ फॉर्म्स है, उसमें कई सारे सर्टिफिकेशन है एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट हम लोगों को करना पड़ता है। एनुअल रिपोर्ट्स है, GST के रिटर्न है, ये सारी चीजें हम लोगों को जमा करके हम लोगों को हर साल क्लेम सबमिट करना पड़ता है DIC में, या जो भी हमारी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है वहाँ पे। तो ये सारे फॉर्म्स तैयार करना, ये भी एक बहुत बड़ा एरिया है। एंड फिर लाइजनिंग विद द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एट द टाइम ऑफ गेटिंग द EC एज वेल एट द टाइम ऑफ क्लेम्स, दोनों समय पे आपको डिपार्टमेंट से आपको लाइजनिंग करना पड़ेगा कि हम लोग कैसे उसको स्पीड अप कर सके और कैसे उसमें मैक्सिमम बेनिफिट दिला सके। इसके अलावा जैसे मैंने पहले ही बताया कि कई सारे सर्टिफिकेट्स हम लोगों को इशू करना होता है एट द टाइम ऑफ EC, जब हमको पहला एलिजिबिलिटी आ जाता है कि हम इतने सब्सिडी के लिए एलिजिबल है फॉर दिस मच टेन्योर। सेकेंडली, जब हम ईयरली क्लेम फाइल करते हैं तो वो टाइम पे भी हम लोगों को कई सारे सर्टिफिकेशंस देना होता है फॉर ईयरली फाइलिंग ऑफ द क्लेम्स। तो ये कई सारे एरियाज है जहाँ पे एज अ CA हमारा काम बहुत अच्छा है, हमारा रोल बहुत अच्छे से हम लोग कर सकते हैं। एंड छोटे लोकेशंस पे अभी भी बहुत कम CA इसमें काम कर रहे हैं। तो दिस इज अ पर्टिकुलर एरिया जहाँ नॉट ओनली सब्सिडी के साथ में आप फाइनेंस भी आप जोड़ सकते हो कि आप प्रोजेक्ट फाइनेंस भी कर रहे हो और साथ में आप सब्सिडी भी कर रहे हो, तो एक अच्छा एवेन्यू बनता है प्रैक्टिस का इन दी
smaller locations as well as in a bigger locations. Specifically आप ये practice में आप जा सकते हो. This is all from my side. If any question asks, we can take it. Thank you. Questions? Now, Sir, if any questions are there, please share. yes, just I'm sharing you. I have already shared with you. Please ask the Sir, question. first question is, for MH subsidy purpose, whether promoters of should have of Maharashtra inhabitant and voter Aadhaar card holder? Not necessarily required. If you are setting up a unit in Maharashtra and if you are having a Udyam where the address of the unit is of Maharashtra, you are eligible for the subsidy. Okay. Second question is Udyam registration mandatory to avail state subsidies? 100%. Udyam is compulsory for applying for subsidy. Okay. Next question is, what is the online portal for applying for MSME subsidies? Maitri. It's maitri.com on which we have to apply for the subsidy. Okay. Next question is, how can MSMEs track the status of their subsidy applications? They have to physically check in the office with the implementing agencies under whom they have applied for it. Online आप application आप verify नहीं कर पाओगे कि आपका status क्या है करके, आपको ऑफिस में ही फिजिकल में चेक करना पड़ेगा. ऑनलाइन उसका कोई ये नहीं आता है, ट्रैकिंग सिस्टम नहीं है. Perfect. Next question is, what subsidies are available under the package scheme of incentives? As already discussed, package scheme of incentives में subsidies हम लोगों को जो available है, that is in the form of first state GST, second interest subsidy, then electricity power tariff, electricity duty. These are the subsidies which are available, and in addition to this, stamp duty exemption. Next question is, what subsidies are available for green energy, solar plant, or pollution control equipment? For solar specific, you're talking about manufacturing? You can consider both, sir. For manufacturing, same scheme is available. And if you are setting up a solar plant, park, no specific subsidies available in MSME, this package scheme of incentive. The scheme is different, under which you are eligible for the subsidy if you are installing the requisite panels. What capital investment subsidies are offered to manufacturing MSMEs? Capital subsidies. Capital investment subsidies. Capital investment subsidies are not there. Only PSI 2019 or 2025, they are all linked with your revenue. Whatever turnover you are doing, based on that, you will be getting the subsidy. Okay. What employment linked subsidies are available to MSMEs? MSME employment link subsidy is available in 2025, which we have talked about कि जो आपका LSA है या मेगा है, अल्ट्रा मेगा है या सर्विस सेक्टर है, वहाँ पे उन्होंने आपको क्राइटेरिया दिया है अदर दिस मच इन्वेस्टमेंट और दिस मच एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. अगर कोई यूनिट है और अगर वो फॉर एग्जांपल अगर इफ यू आर सेटिंग अप अ सर्विस इंडस्ट्री इन छत्रपति संभाजी नगर एंड इफ यू आर डायरेक्टली इन्वॉल्व एम्प्लॉइंग मोर देन 100 employees, so you are eligible for the subsidy. Okay. What additional benefits are provided to SC, ST entrepreneurs? SC, ST entrepreneurs, they are getting additional 20% of the benefit on the fixed capital investment. As I said, for example, if you are setting up a unit in Chhatrapati Sambhajinagar, you are eligible for 80% of the subsidy. And if the entrepreneur is SC or ST categorized, so you will be getting 100% of the subsidy. Okay. Can an MSME avail both central and Maharashtra state subsidies together?
Yes, he can avail, but the maximum ceiling limit would be 100%. Okay. Or in case of food and agro, it would be 120%. Okay. Does Maharashtra provide subsidies for quality certification like ISO, ZED, or BIS? Yes, they do. What support is available for MSME participating in exhibitions and trade fairs? Trade fairs, they get themselves registered with government, and they provide the stalls at concessional rate. No specific concession is available under the PSI 2019 or 25. Okay. Are there marketing and branding subsidies for Maharashtra MSMEs? No. Can we claim subsidy for solar farms under the scheme? No. I told you that under PSI 2019, there are no such subsidy available. Subsidy available for solar park is only if you install the specific solar panels. That's it. Okay. I think these are the questions we have. Any other questions, sir? No, sir, we don't have any other questions. Okay. Then shall we conclude, sir? Yes, sure. Okay. Thank you all for your enthusiastic participation and valuable contribution throughout this session. On behalf of the entire committee, it is my honor to propose a heartfelt vote of thanks for the successful 83rd MSME Pathshala Series 2.0 on subsidies for MSME. Our deepest appreciation goes to Speaker CA Anand Totla sir for an outstanding presentation. From dissecting various schemes to addressing common pitfalls in subsidy claims, your practical insights and question answer responses will undoubtedly enhance our advisory capabilities and client outcomes in the field. Sincere thanks to the management committee for campaigning this series. Their foresight ensures MSME Pathshala remains a beacon of professional development amid evolving policy landscapes. We also acknowledge the diligent efforts of the committee team, ICI technical staff, and webinar moderators for flawless execution despite logistical challenges. Finally, a big thanks to you, to every participant. Your probing questions and engagement have elevated this session beyond knowledge sharing into a collaborative problem solving. We eagerly await your presence in the upcoming edition. Wishing you a productive evening ahead. I am CA Puneet Jain, coordinator, signing off for today. Thank you and namaskar. Over to you, sir.